Hello students, good evening everyone. I'm very sure that today complete student fraternity who have gone through a NEET examination across Northeast as well as India will be very happy seeing the paper. And here I would like to introduce Dr. Satinder Kaur ma'am, Botany Faculty of Potential and Concept, and I also introduce Mr. Abdul Manan sir, the Premier Faculty of Biology from Potential and Concept, and myself Dr. Gandhi, the Academic Director of Potential and Concept Institutions. And we are very happy today to stand in front of you, and we will be the first institute across Northeast and India to provide you with the answer keys on live today for the NEET 2021 examination. And the most important part that I wanted to discuss with you today is like it was a very big treasure hunting question mark. The pattern change, then number of questions 200, time 180 minutes, and then COVID situation, n number of factors, and there was like many circumstances and many different questions that were triggering, hitting your mind continuously in these many days. But everything came to an end today, and I'm very sure and very happy that it was a completely free paper, that every student have relaxed mode of answering the paper, and the paper was strictly abide to NCERT as NTA mentioned earlier. And if you look at the biology paper, and my faculty will discuss about biology paper, then we'll proceed with physics and chemistry analysis a little bit. Yeah, ma'am. So, hello everyone. I can see the smile on everybody's face. I hope you are smiling, isn't it? Yes, na? Your hard work and our hard work is being paid off, isn't it? Fine. Yes. And you must have seen the question papers. It's what we had discussed in the class, in the papers. I hope everybody could do it properly. No problem from any question, isn't it? 360 out of 360, what we wanted and what you wanted. Hope everybody is going to get that. Not everybody still, but many of you are going to get it. Quite a balanced paper. Every part of the NCERT has been touched, starting from the very first chapter, going back to the ecology portion. Every chapter has been balanced out here. So we have questions from that. NCERT, padho NCERT, pada na. So you have got the answers out here. Let's see, we are going to discuss the paper right now after a few minutes. So I give it over to our sir. He's going to discuss the next part with you. Sir. Hello dear student. We are the faculty of the Potential and Concept Educations, और हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए. वी नो दैट कि ये जो थ्रू आउट द ईयर जो सिचुएशन था जिसमें आपने बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई किया, प्रिपरेशंस किया, और आज बहुत ही एक्साइटेड दिन था जिसमें आप लोगों ने अपने मेहनत को फ्रूट में चेंज करने के लिए जो पेपर अटैम्प्ट किया है, तो उसी पेपर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने के लिए खड़ा हुए हैं. ओके बच्चों, देखो रिजल्ट अब आपने तो पेपर दे दिया है, ठीक है, अब रिजल्ट आपके हाथ में है नहीं. तो देखो, अगर जिनका पेपर अगर गड़बड़ हुआ है, खराब हुआ है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो. तुम लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम काम डाउन रहो, प्रिपरेशंस आगे के बारे में सोचो क्या करना है. ओके एनीवे, क्या मैम पेपर हम लोग क्या उसका एनालिसिस करें, पेपर के बारे में कैसा था? Yes, we can go for it, no problems. ओके तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं. पहले देखते हैं जूलॉजी पोर्शन. अब मैम आपको बॉटनी पोर्शन से आपको करेंगे. पेपर देखो, मोर और लेस जो था आपका एकदम एनसीईआरटी से था और बहुत सिंपल था. आप इसको टफ मत समझना कि क्या है. हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, और अगर आपने एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन के थ्रू अगर नहीं गए होंगे तो हो सकता है कि आपको आंसर में भी कंफ्यूजन हुआ होगा. वैसे एक दो क्वेश्चंस मिले हैं, तो जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ हम लोग आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपने लैक किया है और क्यों एनसीईआरटी ज़रूरी था. वो सारी चीज़ें हम लोग आपको डिस्कस करेंगे. पेपर मोर और लेस आपके पूरे एनसीईआरटी से ही था, बाहर कुछ भी नहीं था. और कुछ ऐसे चैप्टर जिससे हम लोग बहुत उम्मीद नहीं कर रहे थे कि क्वेश्चन आएगा, उससे भी आ गया. जैसे आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चन आ गया इस बार, और ऐसे चांसेस नहीं रहता है, बट आया क्वेश्चन. ओके, तो ये था बच्चों, ये मेरा व्यू था. सर भी अपना थोड़ा सा व्यू पेपर के बारे में देंगे.
I'll talk to you once ma'am is done. Okay. Okay, fine. So, I hope you have seen the paper. हम लोग डिस्कस करेंगे, विल गिव यू द आंसर शीट, बट अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी आया, इजंट इट, एल्गी से क्वेश्चंस आया, आपके पास में टेरिडोफाइट से क्वेश्चन आया. जस्ट अ मिनट, ओके. ओके, हमारे पास में क्या आया, हेट्रोस्पोरस आया, फैमिलीज आया, कितना हमने याद किया था, क्या क्या फ्लोरल फॉर्मूलाज, गो फॉर इट, क्रूसीफेरी ऐसा, लिगिमनेसी ऐसा, वो ऐसा. आई होप सब टिप्स पे था कि नहीं. सो कितना अच्छा फीलिंग आया आफ्टर द पेपर, आफ्टर सीइंग द पेपर. याद आए ना टीचर्स क्या बोलते थे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. सो बाय, बस वो आपको आज पे ऑफ हो गया है, पे ऑफ हुआ है, आप उसको कर सके हैं. हमने आपको क्या करवाया था, हमने आपको डीएनए से आरएनए बनवाया, क्या करा, ट्रांसक्रिप्शन, उसको आज आपने ट्रांसलेट कर दिया इन द आंसर की. सो दैट इज बीन जो हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप है, हमने आपने मिलके काम किया. अब आप बनेंगे डॉक्टर्स, हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स, इजंट इट. पेपर अभी जस्ट विद इन 5 minutes वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन. आई होप यू कैन चेक द आंसर शीट्स. चेक करने का जरूरत तो है नहीं, कन्फर्म्ड है 360 out of 360 in bio. Still, let's wait for it, okay? So. Thank you ma'am. Very well explained ma'am. And Abdul sir. And students, there were so many questions in your mind. Deleted syllabus, 200 questions, new pattern, time sufficient होगा या नहीं होगा, and even before examination, at least 24 hours before examination, I could understand what kind of anxiety and trauma that you guys are into. But I am very sure that when we called and our students started calling us and giving us the feedback that sir 5-6 मिनट हम लोग एटलीस्ट स्पेयर टाइम रख पाए सर, 3-4 क्वेश्चन एक्सेसिवली एक बार डुप्लीकेट किए थे सर, रेप्लिकेट करे थे सर. एज मैम मेंशन्ड अबाउट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम बच्चे ने क्वेश्चन को 1-2 बार रेप्लिकेट भी करके डुप्लीकेट करके क्रॉस चेक भी कर लिए कि राइट या रॉन्ग. इतना टाइम अगर बचा पाया, I'm surely telling you guys, it is just because of that n number of numerous tests that we have conducted with your new format during our ANTS examinations. And I'm very sure and glad that these examinations could help you people during attacking the exam. And if you look at biology, except 4 or 5 tricky questions, other questions are very, very, very normal and easy to go questions. And I'm very sure it did not panic any of the students for sure, who have prepared and followed the guidelines given by the faculty and who have gone through NCERT each and every line. If you see, certain questions were directly picked from NCERT and the lines were as such put as questions. And this is what has been taught to you by the faculty members during their classes, that don't miss out a single line from NCERT and cover it repeatedly. And if you look at physics and chemistry, and I can say it was a very smooth paper for physics and chemistry as well, except couple of questions of physics and couple of questions of inorganic chemistry. I'm very sure that even physics and chemistry was also completely abide to your NCERT and NTA as per they mentioned earlier. And I'm very sure that this year number of 700s and 680s and 650s from Northeast will be very, very, very numerous in number. And we also will be looking forward for your, for the faculty members to explain you regarding the answer keys of 2021 NEET. Thank you so much. One more thing. बच्चों, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे प्यारे, आपने एनसीईआरटी पढ़ा, क्लास किया, ओके. अगर मान लो जो लोग हमारे क्लास में नहीं थे पोटेंशियल में, बट उन्होंने टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन किया हमारा, जैसे एएनटीएस का, तो एनटीएस के इस बार टोटल लॉकडाउन के वजह से और कुछ ऐसे सिचुएशन के वजह से करीब 26 पेपर, 26 मोर देन 26 पेपर हम लोगों ने कराया. और बच्चों यकीन करो कि उसमें से जितने क्वेश्चन हम लोगों ने अपने एनटीएस में दिया था ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस
एज इट इज तो नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा इधर उधर करके ऑलमोस्ट सारे चीजें कवर किया क्या मैम? Absolutely. कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो उसमें से नहीं करवाया गया है, अगर है तो आप बताना हमको, ठीक है? हाँ, एनटीएस का पेपर आपका मतलब आपको यकीन ना हो रहा हो तो उसके सारे वीडियो सॉल्यूशंस हमारे यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, टेस्ट दिया हुआ तो आपके सारे क्वेश्चंस भी पड़े होंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस हैं। सोचो कितना इंपॉर्टेंट था वो चीज़। अगर किसी स्टूडेंट ने सीरियसली एनटीएस को भी बहुत अच्छे से अगर सीरियसली दिया अगर होगा तो वो सारा चीज़ भी क्या होगा, कवर हो जाएगा, सारा का सारा पोर्शंस क्या हो जाएगा, कवर हो जाता है उसमें, ठीक है? मतलब लास्ट सिचुएशन ऐसा आ गया था मैम क्या कि हम एनसीईआरटी के कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बनाए यार ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन डाले, बिकॉज वी आर डिस्कस एवरी क्वेश्चन आउट देयर, है ना? और तभी आपको टिप्स भी आ गए ना, क्वेश्चंस, ठीक है ना? मतलब हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि अब भाई कौन से एनसीईआरटी का जो लाइन है उसको किस तरह से क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम करें, ठीक है ना? तो उसको हम कैसे करें, उस पर हम लोग प्रॉब्लम था। दैट मीन्स थ्रू आउट द एनटीएस हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस मतलब ऑलमोस्ट जो आपका बायोलॉजी का तो मैं एकदम कंफर्म कर सकता हूँ, ठीक है ना? उसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री के भी, तो बायोलॉजी के सारे पॉइंट्स जो थे वो हम लोगों ने एनटीएस में ही कवर कर लिया इसमें। क्लियर है? एनीवे, और आज का अगर हम पेपर देखें तो अभी आप लोगों ने बैठ के एनालाइज भी किया होगा और रियलाइज़ भी किया होगा, एनालाइज एंड रियलाइज दोनों चीज़ें किया होगा कि आपने क्या चीज़ मिस किया है। तो बच्चों एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं अभी सारे के सारे पॉइंट्स एकदम इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें क्वेश्चंस के फॉर्म में सारे के सारे मिल गए होंगे आपको, ओके? तो आप ऐसी गलती कुछ नहीं करना। मैम आपको और कुछ बताएंगे आपके फ्यूचर के लिए कि अभी जो गलती किया उससे सीखना है और आगे क्या करना है। मैम चलिए, पेपर तो ठीक है, पर पेपर का डिस्कशंस भी तो टीचर्स ने किया, तो आपको क्या पेपर डिस्कशन भी तो टीचर्स की हेल्प चाहिए। तो टीचर्स वी आर देयर विद यू ऑल द टाइम, आई होप यू अंडरस्टैंड। कब तक? रात को 12 बजे 1 बजे मैसेजेस किया ना, आई होप यू रिमेंबर, हम लोगों ने आंसर किए ना। सो आई होप सब उसने अच्छे से आंसर आप लोगों ने कर लिया है। बट आई स्टिल से दैट जिसका अच्छा नहीं हुआ बाई चांस, यू नीड नॉट पैनिक फॉर दैट, यू नीड नॉट बिकम डिसहार्टन्ड आउट हियर। हम दोबारा कर सकते हैं ना, वी कैन गिव अ सेकेंड ट्राई अगर बाई चांस आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ। सो दैट मीन्स आपने पूरा हार्डवर्क नहीं किया, कहीं पे थोड़ा सा लैकिंग रह गए। तो हम आई अगेन रिक्वेस्ट, अगर बाई चांस पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप दोबारा एक सेकेंड ट्राई दीजिए एंड गो फॉर सिक्योरिंग द हाईएस्ट मार्क्स नेक्स्ट ईयर। डोंट लूज इन योर हार्ट, अपने दिल को स्ट्रांग बनाइए और कुछ गलत जगह पे मत जाइए, कुछ गलत काम मत कीजिए। मैं फिर गलत काम, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड्स बिकॉज आजकल बच्चे बहुत डिसहार्टन होते हैं, कोई भी स्टेप्स ले लेते हैं। प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। आप अच्छे बच्चे हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट रखना है अपने, तो ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको हार्ड वर्क ही करना है। जिसने भी हार्ड वर्क किया है उसका पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। यू आर गोइंग टू बिकम सुपर डॉक्टर्स नाउ, सुपर डॉक्टर्स। So proud of you, so happy for you and happy for ourselves too. हम the family of Potential and Concept Educations are looking forward to see you all in white coats. कितना खुशी का दिन है। आई होप पेरेंट्स भी आज बहुत खुश हो रहे होंगे, है ना? तो प्लीज़ इंजॉय टुडे, अपना मस्ती करिए, इंजॉय कीजिए, जो भी आपने काम किया वो आपका पे ऑफ होने वाला है, isn't it? Yes sir. यस मैम, बहुत अच्छा बोला। बच्चों देखो, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर आपका गड़बड़ हुआ है, ठीक है, आप उससे डिसअपॉइंट नहीं हो। आपका ये एग्ज़ाम आखिरी नहीं था, अभी बहुत सारे अपने लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी है, ओके? तो ये पेपर ऐसा नहीं कि लास्ट था, तो आप मैंने आप अपना होप मत लूज़ करो, हिम्मत रखो, मेहनत करो, आपको आगे सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है? पेपर हम लोग बच्चों 2 या 3 मिनट के इंटरवल पे हम लोग आते हैं। तो पहले मैं जाने से पहले आपसे कहूँगा कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि बायोलॉजी में कौन कौन 300 प्लस स्कोर कर रहा है, ठीक है? और अगर अप्रॉक्सी मार्क्स अगर आप बता सकते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। बट 300 प्लस कौन कौन आ रहा है नीचे कमेंट में लिखेगा। डॉक्टर लिखना तुम लोग, ठीक है? मैंने डॉक्टर, दैट मीन्स अगर 300 प्लस अगर एक्वायर कर लिया, दैट मीन्स आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट मतलब क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके डॉक्टर लिखिए, ठीक है? हम लोग मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद, फिर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ओके? Potential and Concept Education, Northeast India's leading coaching institute for medical and engineering entrances, produced more than 1600 MBBS seats
including 5 times Northeast ranked number 1 in medical entrance and also 5 times Northeast ranked number 1 in engineering entrance examination. Join the winning team today and take a step towards your dream career. Offline classes starts on 7th of September. Hostel facilities available. So students, we are back with the answer sheet now. Sorry for the delay because of some technical issues. So let's start with the answers of the biology section. The first part of that is the botany part. I am going to start with that. Let's talk about the question number 1. One more thing, मैम. हाँ बच्चों, एक चीज़ जान लो कि यहाँ पे जैसे NTA ने बॉटनी और जूलॉजी को जो बांटा है, तो उसमें एक्चुअली में जो टॉपिक थे, तो देखो कोचिंग वाइज हो सकता है अलग अलग हो, बट इसमें जैसे बॉटनी सेक्शन में आपका बायोटेक भी कवर कर लिया गया है. ओके, तो बायोटेक को बॉटनी में लिया गया है और कुछ पोर्शन जो है आपके जैसे जूलॉजी में भी चले जाएंगे, तो उससे घबराना नहीं है. आखिर अल्टीमेटली करना ही था, तो हम लोग बॉटनी सेक्शंस करने जा रहे हैं, तो मैम और हम लोग मिलकर कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 101. आगे आपका इकोलॉजी क्या बोला, मिलके रहना है, कंपटीशन है फिर भी मिलके रहना है, तो बांट के रहना. तो व्हाट इज द आंसर फॉर 101? द आंसर हैपेंस टू बी रिसोर्स पार्टीशनिंग, द ऑप्शन नंबर 1. लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 102. द आंसर फॉर 102 इज, कहाँ से क्वेश्चन आया? दिस इज फ्रॉम द एनाटॉमी पोर्शन. एनाटॉमी आ गया, एवरीथिंग इज देयर, मेरिस्मेटिक टिश्यूज, सिंपल टिश्यूज, वस्कुलर टिश्यूज. द आंसर फॉर द क्वेश्चन आउट हियर हैपेंस टू बी द ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. हाँ जी, तो आई होप आपने पढ़ लिया है, ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे. द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 फॉर 102. लेट्स स्टार्ट विद 103. 103 क्वेश्चंस बच्चों, ये आपका बायोटेक से क्वेश्चंस लिया गया है. तो डीएनए प्यूरिफिकेशंस जो प्रोसेस इसमें बताया जा रहा है, सिंपली बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग डीएनए आइसोलेट करते हैं, तो लास्ट में जो डीएनए सोल्यूबल स्टेट में रहता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें जस्ट चिल एथेनॉल मिला देते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, ये डीएनए प्रेसिपिटेट होता है. तो इसमें आंसर हो जाएगा डीएनए प्रेसिपिटेट, दैट इज आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा. मैम क्वेश्चन नंबर आपका 104. तो 104, लुक एट द क्वेश्चन, कहाँ से आया? ट्रांसपोर्ट आपके पास है ना. हाउ इज द वाटर बीइंग ट्रांसपोर्टेड? क्या था थ्योरी? ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, कोहेजन, एडेशन, सरफेस टेंशन. आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 104. द आंसर फॉर द क्वेश्चन 104 इज ऑप्शन नंबर 1. ठीक है ना. लेट्स प्रोसीड विद 105 नाउ. देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन आया. दिस इज फ्रॉम क्लास 12 का. क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स. तो देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स से बाहर से आया जेनोगैमी, क्या है? फॉरेनर आ गया, दूसरे प्लांट से आया, क्रॉस पॉलिनेशन किया, तो क्या है आंसर फॉर इट? जेनोगैमी. लेट्स प्रोसीड विद 106. क्या हमने किया? वी हैव गॉन फॉर सेल डिवीजन. तुम अपनी साइड जाओ, मैं अपनी साइड जाऊंगा. किसने डिवाइड किया? सेंट्रोमियर को डिवाइड किया. कौन सा स्टेज में? एनाफेज. आपके पास में एनाफेज 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 आउट हियर. ओके, let's talk about 107. let's go for it sir. क्वेश्चन 104 बच्चों, ये भी सेम है बायोटेक से क्वेश्चन. इस बार एकदम बायोटेक के बहुत सारे क्वेश्चन के बाढ़ आ गया है. ठीक है ना, दोनों चैप्टर करके. इससे पहले इतना क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया. सिंपली इसमें बोला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है उसका सीक्वेंसेस अरेंज करना है. तो पहला क्या होता था इसमें, सिंपली हम लोगों ने क्लास में सीखा था. इसमें ही पहले क्या करेंगे, डीएनए को डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टेट में गर्म करना है, तो उसमें डीनेचुरेशन हो जाएगा. देन उसके बाद उसमें प्राइमर बाइंड करेगा, फिर उसके बाद उसी प्रोसेस बोलते हैं एनालिन, और देन उसके बाद उसमें पॉलीमरेज जो है उसको एक्सटेंड करेगा. तो इसमें आंसर हो जाएगा 107 का 1 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम. नेक्स्ट इज द गैमा कप्स. याद आ गया? मार्केंशिया. मार्केंशिया क्या है? द लीवर वर्ड्स. तो देख लीजिए प्लांट किंगडम से भी क्वेश्चन आया. सो द गैमा कप्स इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? यू आर हैविंग इट इन सम लीवर वर्ड्स. दैट मीन्स लीवर वर्ड्स कौन है? द मार्केंशिया रिक्शा. तो यू हैव इट इन मार्केंशिया ओनली. लेट्स प्रोसीड विद 109 नाउ. 109 क्वेश्चन देख लीजिए कितना सिंपल. हाँ, कितना सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन. पुनेट स्क्वायर बनाओ, आप गैमेट्स बनाओ. बनाया गैमेट्स तो वी गेट व्हाट? पुनेट स्क्वायर फॉर द आंसर. डायग्राम फॉर दिस आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. ठीक है ना, पुनेट स्क्वायर. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट 110 सर.
110 क्वेश्चन बच्चों पूछ रहा था फैक्टर दैट लीड टू द फाउंडर इफेक्ट। ये आपका इवोल्यूशंस का मतलब इवोल्यूशन वाला क्वेश्चंस भी आपके बॉटनी सेक्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो घबराना नहीं, क्वेश्चंस इजी है। इसमें क्या हो जाएगा, फाउंडर इफेक्ट बेसिकली हम किस वजह से जानते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट के वजह से जानते हैं, जो कि स्मॉल पॉपुलेशंस में देखा जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा उसमें। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कम्स 111। क्या है हेट्रोस्पोरस? कितनी बार पढ़ा, कितने आपके पास स्पोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। हेट्रोस्पोरस, वेयर डू यू फाइंड दैट? यू फाइंड दैट इन स्लेजिनेला एंड द एक्वेटिक फर्न्स। कौन है? सैल्विनिया आउट हियर। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर 4. Let's proceed. हाँ जी, heterosporus is the answer and that is option number 4. Okay. Next, अरे, this is your favorite question. Plasticity. क्या है? Buttercup. किस को याद आया मेरे buttercups? The answer is option number 3, the plasticity out here. Let's talk about 113. Yes sir. 113 बच्चों ये बायोमोलिकुल्स का था। अगेन बायोमोलिकुल चैप्टर, इसको जूलॉजी में बेसिकली कवर करते हैं, लेकिन ये बॉडी सेक्शन में आ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करना ही है। क्वेश्चंस बच्चों इसमें पूछ रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एनसीईआरटी में जो टेबल दिया है उसमें आपको साफ साफ कहा गया है कि आपको बच्चों ये टेबल याद ही करना है, ठीक है। आई बात समझ में? आपको याद ही करना है, आई बात समझ में? तो अब उस टेबल में जाके देख सकते हैं कि क्या हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है कि नॉट, ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है, नॉट ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इसमें बच्चों ये अमीनो एसिड और ग्लूकोज ये क्या होता है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं यूज होते हैं। क्या मैम पता है आपको? यस, सिंपल क्वेश्चंस। चलिए मैम, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आई थिंक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के है, मॉलिक्यूलर से है। चलिए मैम बताइए आप इसमें। तो कितनी बार हमने पढ़ा ये वाला सेंट्रल डॉगमा। एरो देखिए, डीएनए का एरो क्या कर रहा है, ये रेप्लिकेशन डीएनए। ये डायग्राम तो सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ, एनसीईआरटी में दिया है, कॉपी में दिया है, पेपर में दिया है। तो मुझे लग रहा है सारे बच्चों का सही हुआ होगा, नहीं? हाँ, किसी ने रॉन्ग तो नहीं किया ना। हाँ जी, व्हाट इज दिस? पहला हमारे पास रेप्लिकेशन आया, फिर उसने, और अभी अगर याद है थोड़ी देर पहले मैंने इंट्रोडक्शन में भी ये दिया था, हमने डीएनए से आरएनए बना दिया, आपके पास में ट्रांसक्रिप्शन करा दिया, आपने आज ट्रांसलेट कर दिया। सो आंसर फॉर 114 हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर 3, द रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। कर लिया ना? हाँ, ट्रांसलेट किया ना। ये डीएनए से हमारे बनता है। हाँ जी, हाँ जी। क्या बोलते हैं इसको मैम? हाँ जी, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब किया। इसमें सिंपली हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3rd हो जाएगा, नहीं? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं मैम हम लोग। बच्चों ने बहुत मेहनत किया है। आप देखिए सेंट्रोमियर, बीच में है सेंट्रोमियर, दोनों आर्म्स है बराबर हैं, दोनों आर्म्स बराबर हैं, तो क्या बनाएगा वो? मेटासेंट्रिक ही बना देगा ना, टीलोसेंट्रिक बनाएगा कि नहीं? क्या मैम ऐसा कुछ क्रोमोसोम है ना, ऐसा कुछ समथिंग? हाँ जी सर, कुछ ऐसा, पर अभी भी थोड़ा बड़ा छोटा बन गया। बड़ा छोटा बन गया। हाँ, बराबर कीजिए ना सर, तभी तो मेटा। हाँ जी, ये हमारे हाथ हैं बराबर वाले, तभी तो मेटासेंट्रिक है ना। नहीं तो सर का तो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए 116 सर, करिए आप। ये अगेन क्वेश्चंस बच्चों बायोटेक का ही हो गया। मैम पता है जब डीएनए में जेल चलाया जाता है तो डीएनए दिखता नहीं है। अच्छा। उसी से ये लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चंस क्या। तो क्या करते थे हम लोग, इसमें इथिडियम ब्रोमाइड मिलाते थे, नहीं? तो उसके बाद जैसे उसको यूवी लाइट में एक्सपोज करते हैं तो उसमें बहुत ही ब्राइट कलर दिखता है। कैसा दिखता है? ब्राइट ऑरेंज कलर। दैट इज, इसमें क्या हो जाएगा मैम? इसमें आंसर हो गया है आपका, ये सेकंड आंसर हो जाएगा, ब्राइट ऑरेंज। बहुत सिंपल सा, एकदम सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। देख रहे हैं अभी तक जितना क्वेश्चन डिस्कस किया मैम, सारे एनसीईआरटी के ही है। अभी तक हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना पड़ा कहीं पे ना, कुछ नहीं। हाँ, कोई परेशानी नहीं। क्या तो बोलना पड़ा? बस पढ़ो एनसीईआरटी, पढ़ो एनसीईआरटी, कॉपी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, कॉपी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, आ गया। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। सुनिए द परसेप्शन। हाँ जी, परसेप्शन आ गया कहाँ से आपके पास में? द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। क्या है लास्ट चैप्टर? दिस इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वाला। क्या किया हमने पढ़ा फोटो पीरियडिज्म। फोटो और पीरियड, कितना टाइम चाहिए लाइट का पीरियड आउट। मैम ये तो टॉपिक ऐसा है कि हम लोग इसको कहते हैं कि भाई ये चैप्टर छोड़ दो लेकिन इसको पढ़ लो, है ना? फोटो पीरियडिज्म यही बोलते हैं ना। तो लाइट तो दिया, किसको लाइट दे दिया हमने? लाइट किसको देते हैं? लीफ को। हटा दो सारा लीफ तो वो फ्लावरिंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो लाइट में कौन सा बना था सर? हार्मोन कुछ बनता था ना उसके अंदर, हार्मोन। अरे और ये जो सेकंड लास्ट जो टेस्ट था हम लोग का एनटीएस ना,
उसमें ये क्वेश्चन एकदम सीधा है। अच्छा ठीक ही ये क्वेश्चन था ना? हाँ जी हाँ जी, मैंने याद आ discuss गया। किया इसमें। तो सीधा हार्मोन, question हाँ जी, था। हार्मोन कौन सा? फ्लोरिजन, है ना। तो लीफ ने लिया, बनाया आपके पास फ्लोरिजन, और हमारे पास में फोटोपीरियडिज्म हो गया। सुंदर सुंदर फ्लावर्स आ गए वहाँ पर, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सर। अरे मैम ये अभी जो मैंने बोला टेस्ट में एकदम सीधा क्वेश्चन है एकदम। हाँ जी। मुझे अच्छे से याद है, मैंने ही यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन बनाया था। हाँ जी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके देखो बच्चों, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आप हिल जाओगे एकदम। ये जो भी पढ़ेगा इसका जवाब पता मैम क्या देगा? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट बोला जा रहा है ना, उससे हिंट लगता है कि ये पीसीआर है। बट मैम पता है ये क्वेश्चन कहाँ का है? हाँ जी, कहाँ से? ये हाँ यस, समरी से आया। जो आपका बायोटेक का जो लास्ट एकदम पोर्शन है, लास्ट में समरी। समरी कोई पढ़ता ही नहीं है। नहीं पूछो। कल जिसने मेरे को फोन किया, मैंने क्या कल बोला था, क्या पढ़ो? ओनली समरी पढ़ो आज। याद कर लो, 25 to 30 स्टूडेंट जिसने फोन किया, क्या बोला? समरी आज पढ़ो। आ गया समरी से, ठीक है ना। ये बच्चों देखो, ये क्वेश्चंस इसमें आप सीधे बोला जीन ट्रिगरिंग द इन्वॉल्विंग। तो बेसिकली अगर हम लैंग्वेज पे जाएंगे ना, ऐसे अगर कोई नॉर्मली अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, उससे अगर पूछा जाएगा तो वो सीधा बोल देगा इसमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, क्योंकि इसमें हिंट दे रहा आपका पीसीआर से। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में सीधा दिया गया है कि ये जीन थेरेपी का है इसमें। तो इसमें आंसर है जीन थेरेपी। अगर नहीं ये हो रहा है तो एक बार आप जाके आप एनसीईआरटी में खोलो और लास्ट पैराग्राफ में जाके पूरा रीड आउट कर सकते हो, एकदम पूरा दे रहा है। इसका आंसर हो जाएगा जीन थेरेपी हो जाएगा इसमें। क्लियर है मैम? हाँ जी। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। अब क्वेश्चंस आ रहा है। ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है मैम? ये तो इन्होंने फिर से घुमा दिया। वैसे एल्गी भी है, वैसे हमारे पास कहाँ फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स आया ना, डायग्राम बना हुआ डायग्राम है कारा का वहाँ पर। हाँ जी, बना हुआ डायग्राम। एल्गी में भी पढ़ाया आपको, वहाँ पे भी बताया। आपके पास मेल एंड द फीमेल गेमेटांजियम एक साथ एक प्लांट में, तो क्या हो गया? मोनोशियस। तो कौन है मोनोशियस? कारा। तो आपके पास में आ गया कारा। बाकी तो आपने पढ़ा, ये दिस इज पपाया। फिर ये मार्केंशिया, उसके भी 2 प्लांट्स होते हैं। एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर डायग्राम से पढ़ाया है, कितने पेपर्स में दिया ना सर? एंथ्रीडियोफोर और साइकस भी ऑटोमेटिकली 2 प्लांट्स हैं। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द कारा व्हिच इज देयर, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस भी मैम, ये जैसे मार्केंशिया देते समय हम लोगों ने उसमें ऑप्शन में कारा डाल के रखा हुआ था। और पहले ये कारा जो था मैम ना, इसका डायग्राम पुराने एनसीईआरटी में ना इसी में प्लांट किंगडम ने दिया हुआ था। अभी उसको उठा के लेके चले गए हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है वहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल एकदम अच्छे से डायग्राम बना के दिया हुआ है। हमने क्लास में भी बहुत बार हाँ बहुत बार पढ़ा है इसमें। एनीवे नेक्स्ट मैम है क्वेश्चन, ये भी आपका 120 क्वेश्चंस, ये भी आपका बायोटेक से हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि पीसीआर का एप्लीकेशन। पीसीआर तो लोग पढ़ा देते हैं मैम, पता है मैम, पीसीआर पढ़ा देते हैं कि क्या होता है, स्टेप्स वगैरह समझा देते हैं, उनका एप्लीकेशन समझाते नहीं है। एप्लीकेशन बायोटेक के लास्ट वाले में ना, जहाँ पे एप्लीकेशन पोर्शन, उसमें आपको बताया गया है। तो पीसीआर को यहाँ पे नॉट यूज, इसमें यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे जीन प्यूरिफिकेशन में हम लोग नहीं करते हैं मैम। बाकी हम लोग पीसीआर से मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन तो होता ही, और जीन म्यूटेशन वगैरह डिटेक्ट करना है। इसमें जीन म्यूटेशन से भी एक क्वेश्चन दिया है कि कैसे डिटेक्ट करते हैं, पीसीआर में आएगा एकदम सेम इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। आगे इसको डिस्कस करते हैं। और देखिए पीसीआर का उन्होंने आपको फुल फॉर्म लिख दिया। मैंने आपको क्या सिखाया था? फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन लिख ही दिया। ऑप्शन भी तो ठीक ही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। आई होप यू हैव डन दैट, है ना। चलिए हाँ जी, हाँ जी। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 121। कहाँ से आ गया हमारे पास? अगेन फ्रॉम द सेल से क्वेश्चन आए हैं काफी, बट अगेन बैलेंस्ड है। तो लेट्स गो फॉर बैलेंसिंग, सर मैच द फॉलोइंग आउट हियर। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपने उसको कर ही लिया है। हाँ मिला लेना। हाँ चलिए, हाँ जी मिला लीजिए उसको। हाँ जी मैम ये शायद क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी का है क्या? हाँ जी, मॉर्फोलॉजी से है। अडाल्फस कंडीशन क्या बोलते हैं? कौन है यूनाइटेड यहाँ पे? फिलामेंट्स यूनाइटेड्स, एंथर्स फ्री, मोनोडाल्फस नहीं पूछा, डाइडाल्फस। फैमिलीज भी तो पढ़ाया, फैमिलीज पढ़ाया। तो कौन है? लेग्यूमिनेसी फैमिली पढ़ाया ना अभी। सर वो भी तो क्वेश्चन आया इसका एक और फ्लोरल फॉर्मूला में, तो वहाँ पे भी तो डाइडाल्फस लिखा ही है ना। 9+1 है ना सर। बच्चों को लगता है कि जैसे ये डाल्फस डाइडाल्फस क्यों पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा लिटिल बिट एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं देके आपको जो मैम वो लास्ट में वो फैमिली जहाँ पे दिया हुआ है उनके डिस्क्रिप्शन में एक वर्ड डाल दिया हुआ वहाँ पे। तो उसको है तो हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी जब फ्लावर पढ़ाते हैं तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ाते हैं, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली में समझते नहीं कि वो एनसीईआरटी में है, दूसरे जगह पे दिया हुआ है। ठीक है,
अच्छा था क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा मैम? आंसर नंबर 3 3 हो जाएगा। पी प्लांट की फेबेसी, हाँ फेबेसी में ही दिया हुआ है। फेबेसी फैमिली, ठीक है। ओके मैम, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन है ये हमारे पास तो मिक्सचर क्वेश्चन है। हाँ। देखिए टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन सब घुमा दिया एक साथ, क्योंकि टिश्यू कल्चर को या माइक्रो प्रोपोगेशन उसी को टोटिपोटेंसी भी बोलते हैं। हाँ मैम मिला देते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा बोलिए मैम? चलिए इसको बनाइए, किस किस को फ्यूज करा है? पोमैटो को, ओके पोमेटो, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन से पोमेटो। एक ही एग्जांपल्स है, एकदम सिंपल सा। ओके बदमाशी कर ली पोटैटो टोमेटो को करके। वैसे ब्रिंजल को भी कर सकते हैं, वो भी किया है। एनसीईआरटी ने उसको नहीं बताया ब्रिंजल और उसको, बट हमने तो पढ़ा है ना। सभी टिश्यू कल्चर फिर क्या होगा? प्लांट टिश्यू कल्चर याद है ना? पहले बताओ कौर मैडम का पीएचडी टॉपिक क्या पढ़ाया? टिश्यू कल्चर। तो वही तो आया टिश्यू कल्चर पेपर में। तो कौन है वो? ड्यू टू दैट टोटिपोटेंसी। हाँ जी, ठीक है ना। बच्चे स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है ना, आराम से करते रहना क्वेश्चंस। अच्छा मैम इसका मेरिस्टेमेटिक कल्चर के लिए क्या तो आपको करना है, एक्सप्लांट लेना है, आपको डिजीज फ्री करना है, तो वायरस फ्री प्लांट्स ही होगा ना। अच्छा मतलब जो टॉप होता है उस पे जो नया ग्रो करना है टिश्यू मेरिस्टेमेटिक, वहां पे वायरस नहीं रहता। हाँ सर, इधर भी हो सकता है, एपिकल एक्सिलरी भी हो सकता है। तो दोनों ही हो सकता है, दोनों ही मेरिस्टेम में, तो वायरस फ्री हो जाएगा, है ना। हाँ जी, इसका मतलब इसको इसके साथ। हाँ जी। अब हमारे पास थोड़ा सा फिर हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, सोमाक्लोन्स है ना, इसीलिए तो देर करवाई हमने आपके लिए, अच्छे से टाइप करने में टाइम लग गया। नो प्रॉब्लम्स। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर 2। मैच कर लेना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हो, ठीक है, फाइन। चलिए ठीक है आगे बढ़िए सर। 124 की तरफ आ गए। आप देखे अमेंसालिज्म। हाँ जी, इकोलॉजी बोला। क्वेश्चंस आते, पढ़ना होता है। आप लोग क्या बोलते हैं पीछे के चैप्टर्स, मगिंग है, कौन पढ़ेगा? क्वेश्चन तो आए ना, और कितने, बहुत सारे क्वेश्चन। सो अमेंसालिज्म, हाँ जी सर, क्या होगा? मिलके दोनों को पॉजिटिव हो रहा है ना, दोनों नेगेटिव हो रहा है ना, क्या हो रहा है सर? नेगेटिव और जीरो हो रहा है हमारे पास में। एक को क्या है लॉस, और दूसरे को कुछ हार्म नहीं है, कुछ बेनिफिट नहीं है। सो आंसर फॉर अमेंसालिज्म। मैम इसका एग्जांपल भी बता देते हैं नहीं? बताइए। हाँ जी सर, सिंपली जैसे वो आपके एंटीबायोटिक्स। मैम जैसे सिंपली एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुआ था, तो उसमें क्या होता है, जैसे फंगस ग्रो कर गया था, तो वो उस फंगस से एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हो गया। तो एंटीबायोटिक ग्रो कर रहा है, तो दैट मीन्स वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं। तो फंगस के ग्रोथ के वजह से जो एंटीबायोटिक्स निकला, पेनिसिलिन जो निकला, उसके वजह से तुम्हारा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है। तो बैक्टीरिया बेचारा मर गया, बट फंगस ग्रो कर रहा है। तो मतलब इसमें क्या, एक को लॉस हो रहा है, एक को कुछ नहीं हुआ तुम्हारा। तो इसमें आंसर हो जाएगा, उसमें क्लियर है, ठीक है। 125 देख लीजिए, विच इज इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट देख लीजिए, मेजर सीव ट्यूब्स का क्या है, आप देख लीजिए न्यूक्लियस कहाँ उसके पास होता है, बोला अच्छा न्यूक्लियस, कॉन्स्पिक्शियस न्यूक्लियस नहीं है। सो दैट मींस विच इज इनकरेक्ट इज ऑप्शन नंबर 1 आउट हियर। मैम यहाँ पे एक ट्रिक है, मतलब बच्चों अगर जैसे हार्ड कॉपी मिलता है तो लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन बार बार पढ़ते हैं। अरे भाई आपको क्लास में भी कितनी बार मैम ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने सिखाया कि इसमें जैसे इनकरेक्ट पूछ रहा है उसको हाईलाइट करके रख लो, ताकि क्वेश्चन आगे पढ़ते समय इजी रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। ओके। अब आता है 126। लेट्स प्रोसीड विद दैट। एम्ब्रायोस एग, ये तो सिंपल बेबी क्वेश्चन, बेबी क्वेश्चन है ना। आपके पास में एक एम्ब्रायोस एग बनाइए, कितना सेल्ड बनाइए, कितना न्यूक्लिएटेड बनाइए। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, है ना। ये भी सभी लोगों ने किया, एकदम 100% किया। ये तो किसी ने छोड़ा ही नहीं होगा। हाँ ठीक है ना। हाँ जी। अब आया मैनिटोल। हाँ जी, मैनिटोल कहाँ से? प्लांट, हमारे पास आ गया एल्गी से, प्लांट किंगडम से। कहाँ पर है आपके पास में? फियोफाइसी। फियोफाइसी में क्या है आपके पास में? लेमिनेरियन स्टार्च है, मैनिटोल है। अब फियोफाइसी का मेंबर कौन है? एक ही तो है, एक्टोकार्पस। सो दैट हैपेंस टू बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, एक्टोकार्पस। और कुछ आता तो फियोफाइसी का वो आंसर होता है ना। चलिए लेट्स प्रोसीड। हाँ जी, हाँ 128। ये भी प्लांट ग्रोथ के तो 2-3 क्वेश्चन आ गए। प्लांट ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, इस बार ज्यादा क्वेश्चन है प्लांट ग्रोथ। हाँ जी, ये है। चलिए अब आपको अपने वीड्स को निकालना है। कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली ऑक्सिन। तो ऑक्सिन को हमको वीडी साइड का काम करते कौन? तो 2,4-D डाईहाइड्रोक्सी। ठीक है, चलो आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर 3।
अब फिर इकोलॉजी आपको कंफ्यूजन का क्या पार्ट है? स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप। स्टेट हो गया तो आपके पास में कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्रॉप्स हो गया तो ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आंसर कंफ्यूजन नहीं, बिटवीन 3 and 4 आंसर इज द स्टैंडिंग स्टेट आउट हियर। फाइन, कर लिया ना? मतलब हो गया मैं ऑर्गेनिक, हाँ जी, और ये हो गया स्टेट हो गया आपका इनऑर्गेनिक पार्ट, इसमें सीधा हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाओ 130। आप लोग बच गए म्यूटेशन वाला स्ट्रैटेजी से, वहां तो पुस्सा वस्सा कुछ नहीं आया आपके पास में क्या? गामा रेडिएशन। म्यूटेशन करना है ना सर? क्या मैम? अरे इसमें सिंपल है मैम, प्लांट में जब भी हम लोग म्यूटेशन वगैरह कुछ भी करना होता है तो उसमें गामा रे ही लेते हैं। हाँ जी, है ना? इजी वाला है ना पार्ट, बहुत इजी। हाँ, इतना हेडेक ले रहे थे। हाँ, टेबल ओबल से क्वेश्चन आ जाता तो हालत खराब हो जाता इनका। चलो रटा दिए थे आपको क्वेश्चन करा के। हाँ मैम, इसमें क्या है ना, हम लोगों ने दुआ किया, प्रे किया, इसलिए ये सब इजी क्वेश्चन आया नहीं। चलिए, हाँ जी, अब आ गया हमारे पास वंस अगेन। चलिए डिस्कस करिए सर, चलिए बोलिए। 131 ना, सिंपल है मैम। ये भी क्या आपका बायोमास से रिलेटेड हो गया नहीं? हाँ, तो इसमें स्टेट नॉट इनकरेक्ट बोला है, इसमें फिर से देख लेना, इसमें नॉट इनकरेक्ट बोला जा रहा है। तो ये सब चीजें कंफ्यूज नहीं होना, इसको हाईलाइट करके रख लेना चाहिए। हाँ, नॉट करेक्ट, हाँ इनकरेक्ट हमें इसमें से देखना है इसमें। ओके, तो इसमें सिंपली मैम ये लग रहा है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी अपराइट। सर वो जीवन बैच का क्वेश्चन है, ये उसी में डिस्कस किया, उसमें क्वेश्चन आया ये वाला। नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे भी एनटीएस में भी आया हुआ है, इसमें है ना? अभी लास्ट वाले में आया, ये लास्ट पेपर में, लास्ट पेपर में भी क्वेश्चन। ओके, आपको पता है सी कोई पॉइंट का बारे पूछा, इट्स द सेम थिंग आउट हियर। तो आपके पास में रॉन्ग के जो है इट्स नॉट करेक्ट, दैट मींस इनकरेक्ट क्या है? अपराइट नहीं होता है, नीचे आपके पास बायोमास डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ स्पैन। कौन? फिशेस का ज्यादा लाइफ स्पैन है ना, तो ऑटोमेटिकली हाँ जी, तो आपके पास में ऐसा आंसर है। ठीक है, चलिए 132 जीपीपी माइनस आर एनपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आर कौन? आपका लॉस भी तो कर रहा है, कौन? रेस्पायर कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उसको माइनस करा तो बचा कितना आपके पास में? एनपीपी। तो पूछा क्या? आर क्या है? देखा, बचा देते आपको, वो भी देखता पेपर वाला कि बच्चों ने कोरोना में बहुत प्रॉब्लम फेस की। चलो इजी वाला क्वेश्चन। ऐसे भी होता है ना कि बच्चे पढ़ते हैं, ये पढ़ा टोटल और भूल गए, तो बचा जो वही दिमाग में रहता है वही काम आता है, नहीं मैम? हाँ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? रेस्पिरेशन लॉस। रेस्पिरेशन लॉस हो जाएगा। आर सीधा सा पूछ रहा था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मैम, ये आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज? अब कैराजिनिन, फाइकोकोलाइड्स कितना पढ़ाया, अगर कैराजिनिन, फ्यूनोरी, एल्जिन, ये तीनों के तीनों पीछे वाला एल्जिन को छोड़ के बाकी तीनों कहाँ? रेड एल्गी। और रेड एल्गी है ऑप्शन में आपके पास, हम लोग एम्फेसाइज करते रहते अगर अगेन रेड एल्गी, बट कैराजिनिन, फ्यूनोरी भी तो रेड एल्गी। तो आंसर फॉर दैट इज ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी, हाँ जी। अब आ गया, अब आया फोटोसिंथेसिस, है ना? फोटोसिंथेसिस में सोरगम क्या है? C3 ना C4? क्या है सर? C3 ना C4? C4। हाँ जी, C4 बना। तो इसने जब फर्स्ट कार्बन कंपाउंड क्या बनाया? ऑब्वियसली 4 कार्बन कंपाउंड। कौन है 4 कार्बन? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आउट हियर इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, है ना? C4 प्लांट में मैम तो 3 ही एग्जांपल दिया हुआ था। हाँ, उसमें से मेन शुगर के ना, ये बोलते हैं सोरगम ही बोलते हैं इसमें, है ना? हाँ जी, 3 एग्जांपल्स यहाँ पे सिंपली प्लांट से पकड़ लेना था, कौन सा फोटोसिंथेसिस हो रहा हो गया बात। हाँ जी, चलिए आगे बढ़िए सर। हाँ जी, अब आ गया एनाटॉमी। चलिए, हाँ जी, लेंटिसल्स तो पढ़ा ही है आपने, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही करवाएगा। आपके पास में कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क बनाने वाला फेलोजन ही आएगा आपके पास में, है ना? तो वो बना रहा है, वो एक्सचेंज कर रहा है, कॉर्क में सुबेरिन डिपोजिशन हो रहा है। तो आई होप सबके पास आंसर है। बचा फेलोडम। द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, राइट है ना? ठीक, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बच्चों के मन में धुक धुक हो रहा है ना, राइट होके क्लियर होता जा रहा है, फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ जी सर। ये मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी देखने में बड़ा सा डरावना सा लग रहा था, थोड़ा सा। हाँ, इसमें सिंपली ATS में बच्चों यहाँ पे NADH जो होता है उसमें कितना ATP बनता है मैम? 3 बनता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ही फाइंड आउट करना था, आगे नहीं भी पढ़ते तो भी हो जाता है। इसमें आंसर सिंपल सा था ना? कैलकुलेशन तो करा ना सर, हाँ, कैलकुलेशंस किया, कितनी बार क्वेश्चंस इस पे बना है इसमें। तो FADH में होता है 2 और NADH में होता है 3 ATP बनता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने पकड़ लिया, गलत किया है यहाँ पे।
ठीक है, चलिए मैम नीचे आगे बढ़ते हैं। 137 137 आ गया मैम। ये तो मेरा diagram का है। ये फ्लोरल मैंने diagram का कितना, नहीं? हाँ मैं कितना पढ़ा के बच्चों लोग, ब्रासी केसी का नाम क्रूसीफेरी, जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसीफाइड, देखो 444, फिर आपके पास में आ गया डाइएडाल्फस 9+1, फिर आपके पास में सोलानेसी डाइकॉट, लिलिएसी, तो एक ही मोनोकॉट है 333 ट्राइमेरस, है ना। मैच कर लीजिए, भागिए कौन सा वाला आंसर है, द आंसर नंबर 1। आई होप मैच कर लेना भाई, कहीं पर गड़बड़ हमने राइट आंसर किया, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई तो कुछ मत बोलना, ओके चलिए। अरे मैम पता है ये क्वेश्चन मैंने एनटीएस में कम से कम 4 बार सॉल्व किया, इस तरह के क्वेश्चंस। I know। और पता है मैम उसमें मैं एक ट्रिक बताता हूँ। हाँ जी, ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे हम लोगों को 3 ही फैमिली पढ़ना है, उसको अरेंज कर लेते हैं। पहला है फेबेसी, उसके बाद आता है हम लोग सोलानेसी और लास्ट लिलिएसी पढ़ते हैं। तो फेबेसी में मैंने बोला था गायनीशियम 1 होता है, तो G1, इसमें G2 और इसमें G3, एकदम सीक्वेंस से अरेंज हो जाता है। अच्छी बात है। नाइस ट्रिक है ना? नाइस ट्रिक सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 138। ये क्वेश्चन मैंने 3 बार कराया है कम से कम अरे एनटीएस इस में। बार तो मिक्स, ये अच्छा सेल से बहुत क्वेश्चन आया। हाँ, सेल से भी आया नहीं, हाँ। सेल से क्वेश्चन आया, आप देख लीजिए, आई होप आपको तो पता ही लग गया होगा। हाँ, सिंपल है। क्या नहीं है यहाँ पर हमारे पास एस है, क्या हो रहा है हमारे पास में, एस में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। फिर आपके देखिए क्वेश्चन स्टेज में आंसर्स देखिए क्या हो गया इसमें। सो ऑप्शन नंबर 3, तो मैच करिए आप, आपके पास में आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओके। ठीक है, हाँ इसमें जी मैच हाँ कर जी, लेना, हाँ अच्छा कोई हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे G1 मैच करा देते हाँ हैं। प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है आपके पास में, यहाँ पे G2 में हो रहा है ना, क्यूसेंट फेज तो इनएक्टिव फेज है, ठीक है। हाँ जी, ये मैम ये भी बायोटेक के क्वेश्चंस, इस बार तो एकदम धुआंधार बायोटेक के क्वेश्चंस हैं इसमें। बच्चों इस क्वेश्चंस में सिंपल सा देखो, आप घबरा गए होंगे कि इसमें ये क्या हो गया, यहाँ पे जैसे बीच में ये डाल दिया, कहाँ डाल दिया इसमें, हाँ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज डाल दिया, ये तो अलग है मैम, उसमें एक लैक्सेटिन को दे रखा है कि डाला इसमें, तो लैक्सेटिन डाला है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट पे, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन पे डाला है यहाँ पे। तो अब ये क्या ससेप्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इंसर्ट में सीधा दिया हुआ है इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस केसेस में मैम बच्चों ये हो जाएगा आपका, इट विल नॉट एबल टू कन्फर्म एम्प्लीफिकेशन, अच्छा एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट ऑफ द होस्ट, ओके। मतलब यहाँ पे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट कंफर्म ही नहीं है, क्योंकि वो जीन क्या हो गया, एम्पिसिलिन जीन इनएक्टिव हो चुका है, ओके। चलिए मैम आप ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर दीजिए। अच्छा नहीं हाँ कर दीजिए, हाँ चलिए आप ही कर दीजििए। चलो करो। क्या है यहाँ पर हमारे पास में 140, पहला देखो करेक्ट स्टेटमेंट, कैपिंग में हमने लगाया मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 3' एंड, आप कहाँ पे हो, तो 5' एंड है, कैप कहाँ लगेगा, नीचे थोड़ी ना लगेगा, है ना, वो हमारे पास में बना दे रहा हूँ मैं। इधर हम लोगों ने कैपिंग किया तो इधर 5 प्राइम पे कैपिंग हो गया और 3 प्राइम पे टेलिंग हो गया आपका। इसमें आंसर 2 है मैम। हाँ जी, देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद द रो फैक्टर, ठीक है, टू डिटरमाइन दिस, ऑब्वियसली ये क्या करेगा, टर्मिनेट करने के लिए, तो रो फैक्टर स्टार्ट करने के लिए सिग्मा, तो दिस द करेक्ट ऑप्शन, और अगर स्टार्ट करना होता तो सिग्मा, खत्म करना है तो टर्मिनेट, ओके, रो फैक्टर। हाँ जी ठीक है, इनकरेक्ट दे रहे हैं। हाँ जी ठीक है, करेक्ट दिया हुआ है। हाँ दिस इज करेक्ट। अब स्प्लिट जीन्स ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स में तो होते नहीं है ये क्वेश्चन भी मैम एनटीएस में मतलब 2-3 बार कम से कम करवाया मैंने इसको, ये वाला क्वेश्चन सेम इसमें। हाँ जी, जिन बच्चों ने रेगुलर एनटीएस दिया होगा उस चीज उनको ये जरूर फील हो रहा होगा। और मुझे चेहरा, मैंने बोला था बच्चों देखो ये सब क्वेश्चन चेहरा याद आएगा तुमको, चेहरा भी याद आ रहा होगा इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ जाओ आ गया नेक्स्ट, आ गया मैम, चलिए आप करिए ऑटो रेडियोग्राफी। ओके सिंपल मैम, ये आपका डीएनए मतलब आपका बायोटेक का ही क्वेश्चन हो गया, आपका लास्ट वाला पोर्शन एप्लीकेशन पार्ट से क्वेश्चन हो गया इसमें। और यहाँ पे बच्चों जीन, अभी एक क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था म्यूटेशन से एक और क्वेश्चन दिया हुआ आगे दे रखा है इसमें, बायोटेक वगैरह लगा के इसमें, तो सेम वही चीज़ इसमें आपको। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं पेन लेके चलाता हूँ, थोड़ा अंडरलाइन करेंगे काम आ जाएगा। हाँ, डिटेक्ट द म्यूटेशन जी, तो जब भी म्यूटेशन होगा मैम ना, तो वो पीसीआर में दिखेगा नहीं, क्योंकि उसका प्रॉप काम ही नहीं करेगा ना, तो प्रॉप काम नहीं करेगा तो दिखेगा नहीं, दैट मीन्स इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये म्यूटेशन म्यूटेंट जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। जब इसका रेडियोग्राफी करेंगे, फिर उसके बाद रेडियोएक्टिव प्रॉप से उसको हाइब्रिडाइज करते हैं, फिर एक्सरे फिल्म के साथ रख के जब उसको छोड़ते हैं तो जो फिल्म दिखता है उसमें दिखेगा ही नहीं, इसमें हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैम नेक्स्ट आप करा दीजिए।
हाँ जी, फिर आ गया इकोलॉजी अगेन। देखा, पढ़ना पड़ता है, छोड़ना नहीं पड़ता है इकोलॉजी। नाउ लुक एट दैट, हमसे पूछा क्या अगेन, यहाँ पर हमारे पास वो क्या है, व्हाट डज ई रिप्रेजेंट? तो डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा ही है, ई रिप्रेजेंट्स व्हाट, द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। लॉग का है, बेस है, ये पूछा हुआ है। एनटी क्या है, एनओ क्या है, पॉपुलेशन, द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ इट आफ्टर सर्टेन पीरियड, सब कुछ आपको पता है। आर क्या है, बायोटिक पोटेंशियल, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, है ना। चलिए अब बढ़ते अगेन 143 अगेन हमारे पास थोड़ा स्प्लिट हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे। 143 आई होप सबको पता है, सब्सिडरी सेल्स के है, कंजक्टिव टिश्यूज क्या है, थोड़ा सा ऊपर करिए। हाँ जी, तो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। आप चेक कर लीजिए। अच्छा, इसमें टाइप ही नहीं हुआ, नहीं, अच्छा वो बैच, हाँ जी, सेल्स ऑफ द मेडुलरी रेस फॉर्मिंग अ रिंग, क्या है वो, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। इंटर मींस हम और सर खड़े हैं, हम दोनों क्या है, हम दोनों वस्कुलर बंडल, बीच का एरिया क्या है, इंटर है ना, तो दैट इज व्हाट, मेडुलरी रेस का एरिया है, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम इज द आंसर फॉर इट। दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 है ना। चलिए 144 वायबिलिटी किसका, पोलन ग्रेन्स। करा था ना क्वेश्चन, यहाँ से पोलन गया, पोएसी फैमिली का वहाँ पे गया, सुबह गया, शाम को पहुँचा, कितना 0% जर्मिनेशन। तो बट हुआ किसका, जितना टाइम वायबिलिटी बहुत ज़्यादा फॉर मंथ्स, कौन है, रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी, पढ़ा है ना। तो ऑब्वियसली इतना क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, आप सबको टिप्स में आ गए होंगे। आपका कॉल से मालूम पड़ रहा है कि आपने अच्छा ही किया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एनटीएस में भी दिया गया था। हाँ जी, हाँ जी सर। चलिए आप करते हैं 145 सर। 145 क्वेश्चंस। अच्छा बच्चों, यहाँ पे सेक्शन ए सेक्शन बी जो था ना, वो हम लोगों ने मिला दिया है। वैसे तो हम लोगों को सारा क्वेश्चन बनाना मुझे पता, हम लोगों को पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये मिक्स है, तो उसमें आपको थोड़ा सा देख लेना, कॉपरेट कर लेना इसमें। ये क्वेश्चंस बोला है बच्चों कि व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज का रोल क्या है, सिंपल सा। उसमें सीधा मेंशन किया बच्चों कि ट्रांसक्राइब द आपका टीआरएनए और 5s RNA एंड snRNA, सीधा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। और ये स्पेशली किस केस में, यूकैरियोटिक के केसेस में होता है, ठीक है। में तो एक ही होता है, होते नहीं तीनों, हाँ, एक ही होता है, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी, चलिए मैम आगे चलते हैं। जी, what is this? This is from the photosynthesis. हाँ Yeah, जी, yeah, yeah. photosynthesis से आ गया फिर से, which is incorrect option. अब इनकरेक्ट ऑप्शन आपको डायरेक्टली पता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक हमने पढ़ा। नॉन साइक्लिक में तो दोनों पिगमेंट सिस्टम्स होते हैं फोटो सिस्टम में, साइक्लिक में तो आपके पास में एक ही होता है। साइक्लिक मतलब चला यहाँ से घूम के साइकिल बन के आया, अगर मेरे पास दो है तो क्या ये साइकिल कैसे आया, तो दैट मेक्स इट व्हाट, नॉन साइक्लिक। तो दिस इज व्हाट विच इज इनकरेक्ट, द ऑप्शन नंबर डी फॉर यू, इजंट इट। हाँ जी, चलिए अब बढ़ते हैं 147 फेवरेट क्वेश्चन। अब तो ये छोटे छोटे बच्चे स्टार्टिंग वाले 11 वालों को भी सिखा दिया, कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी सब सिखा दिया। अब हम आ रहे हैं विद ऑप्शन नंबर क्या है, प्लाज्मोगैमी विच इज करेक्ट, फ्यूजन बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म विच मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, सो दैट इज प्लाज्मोगैमी फॉर दैट। हाँ जी, 148 सर, चलिए करिए आप। 48 ये मैच कॉलम है, यहीं पे मैच कर देते हैं हम लोग सीधे सीधे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सेकेंड पेन ले लेता हूँ मैं पहले, देखो यहाँ पे मैच कर लेते हैं। ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन में बेसिकली क्या होगा, इसमें से चूज करो, तो जो इजी लगे उससे स्टार्ट करना चाहिए ना। तो प्रोटीन में बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, एक भी मतलब डबल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड कंडीशंस होता है। मैम पता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो केमिस्ट्री वाले लोगों ने अगर बायोलॉजी नहीं भी दिमाग लगाया तो केमिस्ट्री से ये आराम से हो जाएगा, मैच हो जाएगा। और हाँ, न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड के केसेस में ही हाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड है सिंपली, ठीक है। तो हाँ सिंपल, बहुत सिंपल। इसमें इसके हिसाब से आप लोग मैच कर लेना कौन सा आंसर हो जाए, देख लेते हैं, बता देते हैं हम लोग। आप लोग ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, ये आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन है, सिंपल से। तो मैम पता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आपका और हमारा मतलब जीन जो है ना 99.9% ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, तो सिमिलरिटी आपका भी हमारे जैसा ही है 99.9। हाँ जी, तो अगर हमारा डीएनए और आपका डीएनए अगर सेपरेट आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हेल्प ही लेते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो बेसिस होता है वो होता है आपका
क्या होता है VNTR, हाँ जी। वेरिएबल नंबर टेंडर रिपीट्स, और वेरिएबल नंबर टेंडर रिपीट्स उसमें ये Repeat है, हाँ repetitive रिपीटेड DNA होता था हाँ तुम्हारे जी। इसमें, सिंपल सा, बहुत सा सिंपल सा। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं, ये कॉलम मैम लास्ट आपके लिए। हाँ जी। चलिए आप करिए, इसको सॉल्व बताइए, करिए। क्या क्या, आई होप सबको पता ही है। बैक्टीरिया उठा के डाल दिया, आपका फेवरेट है नाइट्रोकोकस नाइट्रोबैक्टर। आई होप आप मैच कर लेंगे तो ऑप्शन कर देते हैं मैम, हम लोग कर देते हैं। इसमें नाइट्रोसोमोनास जो है, एक मिनट, हाँ नाइट्रोसोमोनास जो है बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका, अच्छा चलो सबसे सिंपल करते हैं मैम, राइजोबियम का हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है ना। तो राइजोबियम्स क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करते हैं। चलो मैम इस एक ही से हम लोग ट्राई करते हैं, आंसर बनता है क्या? चलो चलो ट्राई करते हैं। बी का 4, अरे एक ही है, एक ही है, नहीं सॉरी नहीं, ए है, बी 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 का 4, सॉरी बी का भी 4 भी एक ही है, दिस इज इट। बी का 4, दिस इज बी, बी का 4। अच्छा यहाँ पे एक ही है और कहीं पे 4 है ओके ओके, यहाँ पे ये लोग टाइप करना भूल गए, नहीं बी का A B C D, कोई बात नहीं, बी का 4 एक ही में हो गया, सिंपल आ गया सिंपल से, इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स और बाकी मैच करवा देते हैं हम लोग। तो इसमें ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कन्वर्जन एकदम बिल्कुल सही है मैम, है ना। ये हो गया, उसके बाद है थायो, ये हो गया आपका डीनाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रोसोबैक्टर हो जाएगा आपका डी का हो जाएगा 3rd, ये हो गया पूरा कंप्लीट। So here we come to the end of the botany paper. Smiles on the face. I hope सबके सब क्वेश्चन राइट हैं। प्लीज अपना आंसर्स हमको बताइए, मार्क्स हमको बताइए, कितना सिक्योर किया आपने। आई होप अगेन स्माइल्स, कीप स्माइलिंग, एंड द फ्यूचर डॉक्टर्स सो हैप्पी फॉर यू टू। बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोग थोड़ा अपना नंबर कितने आ रहे हैं वो नीचे वो कर दीजिए, मार्क कर दीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नेक्स्ट पेपर जूलॉजी का स्टार्ट होगा, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। छोटा सा, तुम लोग भी थोड़ा पानी नहीं पी लो, थक गए हो, टेंशन मत लो, ठीक है। सॉल्यूशन सारा फिजिक्स केमिस्ट्री सब करवाएंगे हम, यहाँ पे रात तक लगे रहेंगे जब तक आपका सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी पियो, फिर थोड़ी देर के बाद आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग जूलॉजी सेक्शन का स्टार्ट करते हैं। 5 times Northeast ranked number 1 in medical entrance, and also 5 times Northeast ranked number 1 in engineering entrance examination. Join the winning team today and take a step towards your dream career. Offline classes starts on 7th of September. Hostel facilities available. Hello everyone, myself Rashmita Chakravarti, Zoology faculty. Hi everyone, myself Purabhi Chamwa, Botany faculty. So we are bringing the solutions of today's exams. So let's continue. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 151. ओके, ये देखो, ये क्वेश्चन 151 बायोटेक्नोलॉजी से आया है, ये बायोटेक्नोलॉजी के आपके प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से आया है, और ये क्वेश्चन आपको 196 पेज में मिला होगा। इसका आंसर है 3। आप तो समझ ही गए हो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक साइट्स में काटते हैं, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जो कि 4 to 6 बेस पेयर्स का होता है। ओके, 196 चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, वो देख लेना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 152 में जाएंगे, जो बॉटनी क्वेश्चन है। लीजिए मैम। Okay, so the question is from cell cycle and cell divisions. So the chromosome number is asked. In the fruit fly, chromosome number is given 8 for the interphase, and you know, though the DNA replication will occur, number of chromosome will remain constant. So here the chromosome number in the interphase, it is given 8. So even in the same as the S phase, number of chromosome is going to remain same. So it is answer 1. Okay, thank you. So next question, zoology. Next botany. Oh, next is again botany. All right. Which of the following belongs to the family Mucidae? So this is the questions from the living world students. So first chapters. So here the answer will be what? Housefly. It is a direct questions given from the chart. Always I used to say, for the example, you follow the NCERT. No need to go beyond the NCERT. So you have got the answer. Next questions. It is from zoology. स्टूडेंट, दिस इज़ फ्रॉम, तुम लोग तो समझ ही गए हो, दिस इज़ फ्रॉम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अराउंड 262 263 पेज में आपको ये मिल जाएगा। सक्कस एंटेरिकस आपको याद होगा, इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं, और डायरेक्टली वो एनसीईआरटी से आया हुआ है। सो पेपर बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल था, मुझे पता है आप लोग ने सब करेक्ट ही किया होगा, तो इतना ज़्यादा बात नहीं करके हम अभी 155 देखते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। ओके, दिस इज अगेन फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आपको पता ही है, पिछले साल भी 9 क्वेश्चन आए थे 20 में, आज इस बार भी बहुत क्वेश्चन इससे आया है। विथ रिगार्ड टू इंसुलिन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, द इंसुलिन प्रोडक्शन प्रोड्यूस बाय आर टेक्नोलॉजी इज दिस। तो इसमें जो आंसर है
वो आपका 3 है। तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ, A है, C है और D है। तो इसमें तुम देखो मिला के, तुम अगर इसका पेज नंबर देख लो 211 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, उसमें होगा। इसमें अगर आप देखो सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, तो मैच्योर इंसुलिन में वो नहीं है, तो करेक्ट है। फिर देखो सी, द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, तो ये भी करेक्ट है। और डी, ए पेप्टाइड विद दिस डाइसल्फाइड ब्रिज होगा, ये करेक्ट है। तो सी यहाँ पे अगर तुम देखोगे इसमें आंसर जो ए, सी और डी है, तो इसमें बी क्या गलत है? द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आरडीआरए टेक्नोलॉजी है सी पेप्टाइड, वो तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें ए पेप्टाइड है पॉलीपेप्टाइड और बी है, जिसको हम 2 अलग अलग इकोलाई में ब्रिंग करके फिर उसको ज्वाइन करते हैं। ओके, तो तुम उसको रेफरेंस के लिए बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल 211 पेज में देख लेना। चलो अब नेक्स्ट है, ये आपका क्वेश्चन आया है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आपको पेज नंबर उसमें मिल जाएगा अराउंड 280, हाँ 280 में मिल जाएगा। उसमें देखना, उसमें जो ब्लड ग्रुप का पार्ट है RH फैक्टर के पहले वाले पेज में उसमें दिया है। तो आप देखो इसमें पूछा कि AB ब्लड ग्रुप जिसका होता है, नॉर्मली क्या होता है, वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट रहता है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट के RBC के सरफेस में A और B एंटीजन दोनों रहता है, लेकिन एंटीबॉडी प्लाज्मा में एब्सेंट रहता है। तो इसमें आंसर आप मैच कर पाओगे, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी A एंड एंटी B। अगर यूनिवर्सल डोनर होता तो सरफेस में एंटीजन A और एंटीजन B दोनों नहीं रहता। ओके, तो इसलिए मैच तो कर पाएगा। अभी देख लो खोल के बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के किससे पेज में 279 उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, इट इज फ्रॉम क्वेश्चन बॉटनी। हाँ, ये बॉटनी मैम आपको बोलेंगे, लीजिए मैम। Okay, students, so question number 157, it is a question from the genetics, and the question is asked from sickle cell anemia. It is an autosomal recessive disorder. So both the parents, they are shown to be heterozygous. So whether it is male parent, heterozygous condition, we write like this. Female parent, she is also heterozygous. So if you do the cross, what are the progeny combinations? This is, all you did correctly. This is quite easy. Fine. So it is an autosomal recessive disorder. So disease is spread only to 25% of the progeny. So according to the question, the answers, it is 3. Hope all you corrected, all you did it correctly. Next questions. Okay. Okay, this question is from zoology. Okay. Again, the question is from body fluids and circulation only, and it is around this given in the page number 280. RH फैक्टर के नीचे वाले पोर्शन में ब्लड कोगुलेशन में मेंशन है। तो अब तुम समझ ही गए होगे इसमें क्या है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्वर्शन ऑफ द फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन ग्लोबुलर प्रोटीन है, फाइब्रिन फाइब्रस प्रोटीन है, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या होगा, थ्रोम्बिन होगा। ओके, थ्रोम्बिन इज द करेक्ट आंसर। तो ये देख लेना आप बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पेज नंबर 280 या 280-81 में मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसमें देखो, ये आपका है क्वेश्चन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से आपको अगर देखोगे 172 पेज में, वहाँ पे देखना नीचे की तरफ एक टेबल दिया हुआ है, अभी निकाल के आप देख सकते हो और मैच कर लो। इसमें आंसर 1 है, बिकॉज आपको एल्वियोले में पूछा है। ओके, हरबरी ने अगर किसी में मार्क किया होगा, मे बी एटमोसफेयर का, एल्वियोले का मार्क करना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40। तो इसके बेसिस पे आंसर इज 1। ओके, किस चैप्टर में है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चेक कर लेना अभी। नेक्स्ट है, देखो पूरा NCERT से, आई एम वेरी हैप्पी कि पूरा NCERT से, हाँ सारा क्वेश्चन NCERT से है, इसलिए हमेशा NCERT बोलती रहती थी, और सब लोग मेरा मतलब ऐसे बोलते कि मैम आपको NCERT ही सिर्फ पसंद है क्या? यस, सच में लास्ट में नहीं सिखाया। ये देखो इसमें मैंने आपको कहा था कि ऑटोइम्यून डिजीज़ नीट वालों का काफ़ी मतलब NTA से क्वेश्चन आता ही है, काफ़ी फेवरेट है ये पार्ट, और ये पूरा डायरेक्टली 312 पेज से आया है, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, तो इसमें आंसर आप पता ही चल गया होगा, तुम लोग इतना प्रैक्टिस किया, इतना रिविजन किया, 100% शेयर तो करेक्ट होगा ही, दैट इज माइस्थेनिया ग्रेविस नंबर 3। ठीक है, इसमें आंसर 3 होगा, 312 में डायरेक्टली लिखा हुआ है, निकाल के मैच कर लो। नेक्स्ट अभी देखो ये क्वेश्चन, हाँ दिस इज फ्रॉम बॉटनी, यस लीजिए। Okay, students, so this is the question given from molecular basis of inheritance. All you studied it, transcription, translations. So here the name of the enzyme is asked, which has the capability to catalyze initiation, elongation and terminations. So here the only answers, DNA dependent RNA polymerase. All you know, this is the answers for question number 161. The answer will be 2, DNA dependent RNA polymerase enzyme.
Okay, so next questions. Well, again the question is from molecular basis of inheritance. So from genetics many questions are asked. Which of the following RNA is not required for the synthesis of protein? So you know, for the protein synthesis all the three type of RNAs are required: mRNA, sRNA as well as tRNA. So which RNA is not required here? siRNA. So for the question number 162, answer will be 4, siRNA. Well, next question is from zoology, so ma'am will explain. Okay. In 163 ये क्वेश्चन देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है, पेज नंबर 160 और 161 तक कंटिन्यूएशन है, वो आप निकालो। इसमें डायरेक्टली लिखा है कि इसमें आंसर जो है 2 है, दैट इज LNG20। ओके, LNG20 और प्रोजेस्टा 60 है। तो आपको एक चीज़ देखना है कि आप जाके चेक करो 160 के लास्ट में मिलेगा या तो 161 में मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी पूरबी मैम आपको बोलेंगे 164। Okay, again the questions from molecular basis of inheritance. So here the percentage of adenine is given 30% and you are supposed to find out the percentage of thymine, guanine and cytosine. So as per Chargaff's rules, adenine is equivalent to thymine. So adenine का percentage तो दिया हुआ है 30%, thymine का भी 30% हो जाएगा. So rest is guanine and cytosine, 40% is left. So even for the cytosine, percentage will be 20% and for guanine, it is 20%. So the answers as per the question 164, it is 3. All right, thank you. Next questions. So Rashmita ma'am will explain this. This is from microbes in human welfare. Okay, in page number I think it is given in 183. इस पेज में ही था, तो उसमें आप देख लेना। एस्पेरजिलस नाइजर का है, एसिडोबैक्टर एसिटी, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिकम एंड लैक्टोबैसिलस। अगर आपको इसको मैच करना है हाँ नाइगर, तो चूज द करेक्ट आंसर ऑन दैट बेसिस। तो आप उस पेज में चले जाओ 183 में, मुझे जितना याद है मैम 183 में था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। तो आप इसको मार्क करके आप चेक करके देखो, इसका जो आंसर है वो 1 में आ जाएगा, ठीक है। एक बार देखो, मैच करो। Aspergillus niger, it is citric acids. Yes. And Acetobacter aceti, it is acetic acid. Yes. Clostridium botulicum, it is butyric acid. And Lactobacillus lactic acid. Lactic acid. Okay. This question is from microbes in human welfare. तो ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ मैं कर रही हूँ। Yes, this is from our favorite part, that is animal kingdom. I think this is favorite part. Okay, बहुत पढ़ाया था ये। Read the following statement. Metagenesis observation of helpmin. No, जो metagenesis process है alternation generation Coelenterata का है, इसलिए गलत हो गया। Echinoderms are triploblastic and coelomate animals, तो इसमें correct है। Roundworms have organ system level of body organization, तो ये correct है। Complates present in the ctenophore helps in digestion. No, ctenophora के केस में digestion में वो help नहीं करता है, locomotion में करता है। तो इसमें बहुत सारे pages cover हुआ है, starting from 46 to around 54, तो वहाँ पे आपको देख के मैच करना पड़ेगा। एनिमल किंगडम NCERT 11 में। वाटर वस्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल नहीं लिखा, इट इज गिवन एज वाटर वस्कुलर सिस्टम एंड अनदर क्वेश्चन दे हैव गिवन द वाटर कैनाल सिस्टम आल्सो, तो इसलिए ये तो करेक्ट है, दैट इज एकाइनोडर्म। तो इसमें अगर आप चूज करोगे तो आंसर 4 निकला, और मुझे पता है तुमने करेक्ट किया ही होगा। ये बहुत सिंपल सा, बहुत स्वीट सा, बहुत क्यूट सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी आपका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, दैट इज 167। अब आप सोच रहे हो तो मैम ये तो दिया नहीं है, इट्स गिवन इन द पेज 152 फर्टिलाइजेशन पार्ट में दिया है। दे हैव रिटन द वर्ड द जोना पेलिसिडा इज द रिसेप्टर फॉर द स्पर्म बाइंडिंग एरिया। ओके, डायरेक्टली लाइन इतना एकदम अच्छे से नहीं लिखा है, लेकिन उसमें रिसेप्टर्स का दिया है जिसमें जो मेम्ब्रेन का परमिबिलिटी वो चेंज होता है। तो इसमें जो आंसर है जोना पेलिसिडा है। जोना पेलिसिडा नॉन मेम्ब्रेन वाला जो सेल है, इट इज नॉट सेलुलर मेम्ब्रेन, इट्स मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्रेट एंड ग्लाइकोप्रोटीन, वो तुम्हें पता होगा। मैं अभी इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स और भी है, इसलिए मैं बस आंसर का और आपको पेज नंबर्स बता दे रही हूँ, जिससे कि आप एक बार चेक कर सको। नेक्स्ट फिर से देखो आ गया, तुम लोग एकदम फेवरेट वाला दे दिया, हाँ बहुत समझ गए। हाँ एनिमल किंगडम इन्वर्टिब्रेटा से ही सब लोग बोलते हैं नहीं पढ़ना है, एनिमल किंगडम ज़्यादा पढ़ना है। कितना क्वेश्चन आगे देखो। अब इसमें देखो मेटामेरिज्म है, मेटामेरिज्म तुम्हें पता ही है किसमें होगा, एनिलिडा। फिर कैनाल सिस्टम पॉडीफेरा है, कॉम्प्लेट्स हो गया, टिनोफोरा है, नीडोब्लास्ट हो गया, सिलेंट्रेटा है। तो ऑटोमेटिकली अगर मैच करोगे यू आर गेटिंग द आंसर 3, और इसके लिए भी तुम्हें 46 से लेकर 54 तक ही देखना पड़ेगा NCERT 11 में। ओके क्लियर, चलो
नेक्स्ट मैं अभी देती हूँ, देखो हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, एटलीस्ट हम जो भी डिस्कस किए थे, मैं शायद बोल बोल के इतना बोली होंगी तुम लोग थक चुके होगे इस वर्ड से। एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। ये तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा 338 पेज में मिलेगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में। आपको लगेगा ये क्वेश्चन आया है किस चैप्टर से, ये दोनों चैप्टर से में होता है, एक्सक्रीशन में भी है, केमिकल में भी है। केमिकल के 338, अगर नया बुक होगा तो 339 या 340 में मिलेगा, पुराने में 338 है, ठीक है। तो इसमें आंसर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी है, जो कि एफरेंट आर्ट्रियोल के ठीक ऊपर के सरफेस में रहता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन एज वेल एज रेनिन हार्मोन, RENIN। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं 170। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो रिप्रोडक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हो गया। इसके बाद ये आया क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, ये पेज नंबर 163। अभी आप निकालो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा बाहर से आया हुआ है, इसमें जो किसिंग वर्ड है ये वाला, वेनरल डिजीज एंड स्प्रेड थ्रू, ये वाला जो पॉइंट अगर आप देखोगे ये मैच करता है कौन सा ऑप्शन, BCD। अब एक बार मैच करो। स्टेराइल नीडल्स तो होगा नहीं क्योंकि वो स्टेराइल है, उसमें ऑटोमेटिकली जर्म्स नहीं रहेंगे। रह गया तुम्हारा ये क्या क्या होगा इसमें, देख लो B, C और D, ठीक है। तो ये मैच कर लेना, इनहेरिटेंस होगा नहीं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पेज नंबर 63 से पूछा गया है, ठीक है। चलो मैं मैम थोड़ा जल्दी बोल रही है, एनटीएस की तरह नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी है जिसमें आंसर आपको चेक करना है, और आप अभी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, मुझे ये पता है। बाद में मिलके, बाद में जब रिजल्ट मिलेगा ना, बैठ के पूरा समझा दूंगी जितना समझना है। ओके चलो नेक्स्ट, नहीं समझाना पड़ेगा, फिर समझाएंगे, मेडिकल कॉलेज में हेल्प हो जाएगा ना, कहीं ना कहीं तो हेल्प होगा ही। लो ये मैंने बहुत लोगों को ऐसे बोला था कि मैं कॉकरोच गिफ्ट दूंगी अगर आप लोग का बायो अच्छा होगा। बहुत लोगों के लिए कॉकरोच पकड़ना पड़ेगा। मैं बिल्कुल रेड हिट ना, क्या था ब्लैक हिट, रेड हिट वो यूज़ नहीं करूँगी अभी। कॉकरोच कलेक्ट करूँगी, बहुत अच्छे से पैकिंग करके तुम लोग को गिफ्ट करूँगी। ओके चलो इसमें क्या है आंसर, इसमें 113 में जाओ, क्योंकि ये लिंक करता है उस डायग्राम से 113। उसमें जाके आप देखो जो 1 है, रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीकेन प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट। ओके ये गलत है, बिकॉज इसमें मिड गट हिंड गट नहीं होगा, फोर गट एंड मिड गट होगा। बाकी ऐसे सब करेक्ट है, ये चेक कर लो। ऑप्शन नंबर 2 ये दिया है 112 में, और ये तुम्हें 100 उसमें मिल जाएगा, हाँ 11 में मिल जाएगा, और ये भी 111 में मिल जाएगा। 11 और 12 में, तीनों ही ऑप्शन 112 से है, 111 नहीं, और ये मिलेगा 113 से, ठीक है। तो ये कॉकरोच से हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, बायो में इतना मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है। नहीं बहुत अच्छा होगा। बाप रे बाप, एनिमल किंगडम इस बार तो काफ़ी फेवरेट होगा न्यू ड्रॉपर बैच के लिए, कि मैम एनिमल किंगडम ही पढ़ना है, वो भी बहुत दिनों तक, है ना। तो 172, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऐसे भी। और एग्जाम्पल सीखना है, सब लोग एग्जाम्पल छोड़ देते हो, देखा बोला ना, एग्जाम्पल सीखना है कितना इंपॉर्टेंट है। और मैंने तुम लोग को डायग्राम्स भी दिखाया था, बहुत इंटरेस्टिंग वाला, तो याद तो होगा ही सभी को। एक बार मैच कर लो। फाइजेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, लिम्यूलस क्या होगा, लिविंग फॉसिल है, जो किंग क्रैब है 53 पेज में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एंसाइलोस्टोमा हुकवर्म है, ये 52 में आपको मिल जाएगा। पिंक टाडा पिक 54 पेज में है, एनसीईआरटी 11, हाँ पॉलस्टर। और फाइजेलिया तुम्हें पेज नंबर 50 में मिल जाएगा, जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछा है। मैच करके मुझे पता है ये करेक्ट होगा ही, ठीक है, अगर सिली मिस्टेक्स नहीं किया हो तो, वो तो नहीं बता सकते आप। अच्छा नेक्स्ट देखो, फिर से एनिमल किंगडम, बाप रे बाप बेहोश हो जाना है अब इतना एनिमल किंगडम से पूछा है। चलो हाँ बहुत क्वेश्चंस आया है, एक ठीक ही है ऐसे, है ना, तो अच्छे से कॉन्फिडेंटली फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ते हैं ये सब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर होलो एंड न्यूमेटिक बोन्स, तो आप समझ गए। नियोफ्रॉन क्या है, वल्चर है। पेज नंबर 59 में जाओ, 59 में जाके तुम देखो वहाँ पे नियोफ्रॉन है, और नियोफ्रॉन फ्लाइट बर्ड है तो उसमें होगा ये। बाकी रह गया हेमिरेक्टाइलस लिजर्ड है, इसमें नहीं होगा न्यूमेटिक बोन। मैक्रोपस तुम्हारा हो गया। कंगारू इसमें होगा नहीं क्योंकि वो है मैमल है। और ऑर्निथोरिंकस ये भी एग-लेइंग मैमल है, इसमें नहीं होगा। इसलिए बेस्ट आंसर इज व्हाट, द एप्रोप्रिएट आंसर इज 1, दैट इज वल्चर। नेक्स्ट वन, ये पूरा भी मैम आपको बोलेंगे, लीजिए। देखिए सेल से कितना क्वेश्चंस आया हुआ है। The chapter has got highest weightage. Always I used to tell you cell cycle and cell division and cell as a unit of life. So again one more question from the cell cycle and cell division. And here you are asked duplication of centriole during which phase will occur. So you know centriole duplication will occur during the S phase. So this is the correct answers. Hope all you did correctly. Next questions. एक आपका सेल और एक मेरा एनिमल। हाँ सेल का तो बहुत सारा क्वेश्चन every year. हिट हो गया ना, और एक तो बायोटेक तो है। Yes. So next questions, Rashmita ma'am will explain to you. Okay. एक्सप्लेनेशन में इतना नहीं दे रही हूँ, आंसर ही बोल रही हूँ ज़्यादा। इसमें पूछा है कि 94 सपोज टेम्परेचर आपके उसमें लिखा नहीं है पीसीआर वाले में, तो अगर आप 200 समथिंग
4 में है शायद, 4 या 2 में होगा शायद, 202, उसमें अगर तुम देखो जाके पीसीआर में डीनेचुरेशन आंसर होगा, बिकॉज जो डीएनए को ब्रेक करने के लिए हाई टेम्परेचर होता है पीसीआर में, इसमें क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीकेशन ऑफ पीसीआर इन हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन इन द बिगिनिंग, तब डीनेचुरेशन हो। एनिलिंग का मतलब क्या है, प्राइमर का अटैचमेंट, ओके, जो कि कम टेम्परेचर में होता है। एक्सटेंशन मतलब थर्ड स्टेप है, और लाइगेशन तो आपको पता है, दो चीज़ों को जोड़ना, दैट इज आरडीएनए बनाने के टाइम यूज़ करते हैं। तो इसलिए डीनेचुरेशन तो बेस्ट आंसर, नॉट पूछा है, वो शायद आपने किया होगा, गलती शायद नहीं हुआ होगा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल चैप्टर, ओके, ये देख लेना। नेक्स्ट है, ये मैम बोलेंगे, आप बोलिए। So students, strategies से भी questions आ गया है, that question topic is here biofortifications. So here the options are given, improve protein content, second is improve resistance to disease, improve vitamin content, improve micronutrients and mineral content, and you are asked which one is not an objective. So here the answer will be improve resistance to diseases, right? Okay, next questions. Question number 177. Dobson units are used to measure thickness of ozone layer. So all you know it, so easy surface questions are asked from the ecology. So I used to tell you study, go through the ecology part. All the questions are NCERT based. So next questions. Yes. Yeah, it is from zoology. Ma'am will explain to you. लेकिन मैम देखिए पूरा एनसीईआरटी से आया, एनसीईआरटी से सारा पूरा आया, इसलिए मैं कितना खुश हुई थी ना देख के, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। अब इधर देखो, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इज प्रेजेंट एट, तो इसमें नंबर 2 होगा, इसके लिए तुम पेज नंबर 261 में चले जाओ, वहाँ पे एक डायग्राम है स्फिंक्टर ऑडी का, एम्प्यूला ऑफ जंक्शन, हेपाटोपेनक्रेटिक डक्ट, एम्प्यूला ऑफ जंक्शन वो नहीं लिखा है, एम्प्यूला बेटर, उसमें हेपाटोपेनक्रेटिक डक्ट मेंशन है उसमें, ठीक है। पेज नंबर आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, बिकॉज नए बुक में थोड़ा सा सीक्वेंस अलग है, वहीं पर मिल जाएगा। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से है, तो इसलिए इसमें आंसर है 2। नेक्स्ट अभी देखेंगे, देखते हैं मैम आपका है ना, मेरा है, देख लेते हैं एक मिनट। अच्छा हाँ, तो ये 179, ये तो फेब्रुअरी 274, अभी निकालो आंसर तो वैसे ही मिल जाए, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। 274 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में दिया ही हुआ है कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन को बाइंड कराना है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच सपोर्ट देम, ठीक है। तो जस्ट ऑपोजिट टू CO2, इसमें आंसर होगा 1, हाई PO2 होना ही पड़ेगा, लो PCO2 होगा, लेस H+ एंड लोअर टेम्परेचर, जो कि 274 में डायरेक्टली लिखा ही हुआ है। एनसीईआरटी है, कितना बार बोलूँ, है ही एनसीईआरटी से, ठीक है। बहुत हैप्पी होंगे, मैं भी काफ़ी खुश हूँ और मैम भी काफ़ी खुश है, इसीलिए ग्लो आ रहा है चेहरे में, बिना पार्लर जाए हुए पहले से ग्लो आ गया, देखो। अच्छा देखो 180 में तुम लोग का रिजल्ट निकल जाए और चमक जाएगा चेहरा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, ये हम दोनों का ही एक्चुअली बायोमॉलिक्यूल बॉटनी जूलॉजी दोनों से आता है, तो इसमें वो तुम्हें मिलेगा पेज नंबर 140, आई थिंक एंड गिवन 143 में है, 146 में है, उसमें तुम देखोगे सेकेंडरी उन्होंने याद करा है और कुछ नहीं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, इसमें 4 होगा, बिकॉज गलत है, या टॉक्सिन होना चाहिए था, ड्रग्स नहीं, ओके। रिसिन एब्रिन जो होता है वो टॉक्सिन है, इसलिए ये इनकरेक्ट पेयर में आ गया। क्लियर? आप जो बोल रहे हैं मुझे याद है, याद कराया किसने, मेरे टीचर जो अभी देख रहे हैं मुझे, ठीक है, उनसे बात कर करके याद हो गया। अच्छा अभी नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है आपका, हाँ, स्मूथ मसल से, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये दोनों चैप्टर से लिंक करता है, एनिमल टिश्यू से भी है। एनिमल टिश्यू में इतना लिखा नहीं है, ज़्यादा प्रेशर उसमें स्केलेटल मसल के ऊपर दिया हुआ है, लेकिन अगर तुम चले जाओगे लोकोमोशन मूवमेंट में, दैट इज पेज नंबर 303 में चले जाना, वहाँ पर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली रिप्रेजेंट, अभी पता नहीं तुम लोग रॉन्ग पढ़े हो कि नहीं, रॉन्ग लिखा रहता है क्योंकि हाँ, लेकिन फिर भी रॉन्ग वाला अच्छा है, दिख जाता है ना, नहीं तो इनकरेक्ट और करेक्ट वाला अच्छा नहीं दिखता इतना, तो इसमें तो होगा ही इंटरकैलेटेड डिस्क, बहुत खुश हो रहे होगे। ढूंढो अभी 105 NCERT 11, उसमें डायरेक्टली कार्डियक मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क दिया ही हुआ है, तो इसमें आंसर ये इनकरेक्ट होगा, स्मूथ मसल का यही गलत है, बाकी सब करेक्ट आंसर्स है, ओके। अच्छा नेक्स्ट, तुम लोग को दुख दुख हो रहा होगा, इससे मैं फटाफट बोल रही हूँ, नहीं बोलेंगी, सिर्फ एक्सप्लेन ही करती रहती, जब कोई मिल गया हो गया यार। अच्छा ये अर्ली डायग्नोस्टिक मेथड वाला जो पॉइंट है, ये दोनों से लिंक करता है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल से ये दिया हुआ है डायरेक्टली, 212 पेज में है, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हाँ 212, क्योंकि थोड़ा सा तो तेज से बोल रही हूँ, फास्ट बोल रही हूँ इसके लिए। अच्छा इसमें तुम देखो, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड अर्ली डायग्नोसिस जो मेथड है, इसमें ऑप्शंस नीचे कुछ आ गए, इसमें सबसे बेस्ट इज आंसर एलाइजा, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो तुम्हें पता ही है एड्स के लिए और हेपेटाइटिस बी दोनों के लिए यूज़ करता है एलाइजा, ओके। तो इसमें एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन, एंटीबॉडी एंटीबॉडी इंटरेक्शन दोनों होता है, तो ये करेक्ट है, आंसर 3 होगा इसमें। नेक्स्ट फिर से देखो आ गया रिप्रोडक्शन से, काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन से थे,
हाँ पैटर्न अच्छा है, तुम लोग के लिए काफ़ी अच्छा है कि कॉमन टाइप ही आए, अच्छा है, पैटर्न अच्छा है। हाँ, और इतना स्ट्रेस सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में, ऑनलाइन क्लास में रिवीजन करा के हमने पढ़ा के बच्चे काफ़ी हमारे मतलब बहुत अच्छे से हमें हेल्प किए, कोऑपरेट किए, और मुझे पता है उनका मार्क्स अच्छा ही आएगा। अच्छा, चैप्टर्स भी टच्ड है। तो इसमें जो 183 में है, वॉल्स है, आईयूडीज है, वेसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी है, तो तुम लिंक कर पाओगे। तो वॉल्ट के बेसिस पे अगर तुम देखोगे, ये तुम्हारा आ गया। आईयूडीज का पहले देखो, आईयूडीज का क्या होता है, रिमूवल ऑफ दिस फेगोसाइटोसिस स्पर्म्स विद इन द यूटेरस, ठीक है। वेसेक्टोमी का तुम्हारा आ गया वास डिफरेंस का, ट्यूबेक्टोमी का आ गया फेलोपियन ट्यूब का, और वॉल्ट का आ गया ये डायरेक्टली, ठीक है, ब्लॉक। क्योंकि ये तुम्हारा दिया है पेज नंबर तुम्हारे उसमें मिल जाएगा 161 और 161 में ही सारा, नहीं 161 और 162 163 3 पेज देखना पड़ेगा इसके लिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एनसीईआरटी 12 में आपको ये डायरेक्टली मिल जाएगा। आंसर्स देख लो अभी, ठीक है। 2 है इसका आंसर, मैच हो रहा है आपके साथ। फिर भी आपके रेफरेंस के लिए 161 162 163 एनसीईआरटी 12 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट, हाँ मैम ये आपका है, बोलिए। See again the question from cell as a unit of life, and the questions are, you are asked here organelles under the endoplasmic reticulum. So everybody knows what are the organelles under ER. So as per the options, the correct options will be endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuole. That is second options as per this set. So the chapter is very important. Again from cell cycle and cell division, again see. Which stage of meiotic prophase show terminalization of chiasmata as its distinctive features? So you know students, terminalization of chiasmata, it occurs during the diakinesis, though the process gets started during diplotin stages. So these things all are taught in classes. Hope you did not make any mistakes here. So next questions, it is zoology part. Yeah, Rashmita ma'am will explain to you. Give the answers. Okay. इसमें the answer is actually 4. It's written as 2. Answer will be 4. Okay. Which of these not is a typo only? Just avoid this. Which of these not an important component of the parturition in human? The ratio is important. Prostaglandin is an artificial hormone, a para hormone formed because of arachidonic acid. Okay. जो तुम्हारे उसमें दिया है बायोमोलिकुल के पेज नंबर 144 में है, उसके साथ लिंक है। प्रोस्टाग्लैंडिन हम यूज़ करते हैं मायोमेट्रियम कंट्रैक्शन, तो ये करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें 4 होगा। एक मिनट में इसमें एक चीज़ बोलना है, ऑक्सीटोसिन करेक्ट होगा, प्रोलेक्टिन नहीं होगा। 4 इज द आंसर, 2 नहीं है, अवॉइड द टाइपो। 4 इज द आंसर, दैट इज रिलीज ऑफ प्रोलेक्टिन। ये इसके साथ लिंक नहीं है बिकॉज ये लैक्टेशंस के साथ लिंक आता है आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। ओके, तो इसमें आंसर 4 होगा, 2 नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है 187। 187 में ये आया है क्वेश्चन उससे, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री से मॉइट से पूछा है, जो तुम्हें पेज नंबर 168, मैंने बहुत बार बोला होगा 168 169 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से आपको देख लेना है। 168 से लेके कंटिन्यू है 169 तक है, उस पेज में आपको ये मिल जाएगा, जिसमें तुम्हारा आंसर आ रहा है 1। क्या पूछा देखो, नॉट ए स्टेप इन मोएट, दैट इज काउ इज एडमिनिस्ट्रेड विद एलएच। एलएच नहीं होगा बोलो तो क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे कि सुपर एवोल्यूशन होता है, तो इसीलिए इसमें आंसर 1 होगा। बाकी ऑप्शन सब करेक्ट है, पूरा एनसीईआरटी में अभी बैठ के देख डालो तो पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इतना तंग नहीं किया, आप जितना भी बोलिए पेपर में इतना तंग नहीं किया, ट्विस्ट नहीं है इतना ज़्यादा, इसलिए मुझे लगता है तुम करेक्ट बोलोगे ही। अच्छा, ये मैम का है, मैम बोलेंगे। Again, another important unit, ecology. So maths questions, Allen's rule, you know it is for the heat loss, to protect the heat loss, polar seal. Physiological adaptations, it will be kangaroo rat. Behavioral adaptation, it is by desert lizard, and biochemical adaptation by marine fish at depth. So you did it correctly, definitely. Question is directly from the NCERT book. Next questions, yeah, again from the ecology. And this is assertion reasons questions. 2 statements are given. So first statement, a person goes to high altitude and experience altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitations. Reason दिया हुआ है, due to low atmospheric pressure at high altitude, the body doesn't get sufficient oxygen. So in the light of the above statement, choose the correct answers. So both these statements are true and false. No, yeah, for this question the correct answer will be both the reason and assertions, they are correct, and reason is the correct explanations for the given statement. So you have done it. Question number, what was the number?
It is 189. Yes, answer is number 1. The statement, reasons, दोनों assertion and reason दोनों correct है. Well, next questions, it is from zoology part. So Rashmita ma'am will explain to you. मैम ये जो क्वेश्चन अल्टीट्यूड सिकनेस का है, केमिस्ट्री का भी है, बॉटनी का भी है, जूलॉजी का है. अब इस मार्क्स के लिए तीनों लोग झगड़ा करेंगे. मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है. चलिए हम लोग मिलके पढ़ा है. टीम है ना. नहीं, मेनली इकोलॉजी में दिया हुआ है ना. नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लिपिड्स. तो इसमें जो आप देखोगे बायोमॉलिक्यूल से पूछा है. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से स्टेटमेंट लिखा है और तुम समझ ही गए होगे. 144 निकालो, एनसीईआरटी 11 अभी मिल जाएगा ये सब. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सिंगल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड होता है, इसलिए इनकरेक्ट है. लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, पेज नंबर 145. बोला था बार बार, देखे भी हो गए, 100% श्योर. 145 में लेसिथिन का डायग्राम है. ओके, तो फॉस्फोलिपिड है. नेक्स्ट है ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज रिटन इन एनसीईआरटी इन 144 डायरेक्टली इज अ ग्लिसरॉल, सिंपल लिपिड. ये भी करेक्ट है. रह गया तुम्हारा पल्मेटिक एसिड 20 कार्बन है, ये इनकरेक्ट है. इसमें अराउंड 16 कार्बन थे और एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन थे, तो इसलिए गलत हो गया. तो इसके बेसिस पे आंसर आ रहा है आपका 3, दैट इज बी एंड सी. ए गलत है, डी गलत है, ई गलत है. ओके, वो कार्बन नंबर एक बार 145 से गिन लेना और इसका डायरेक्टली लिखा है 144 में, एक बार गिन लेना उसमें कितना कार्बन नंबर है, इसलिए इसमें आंसर 3 करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट अभी देखते हैं. हाँ, ये आ गया आपका. देखो रिड्यूस सिलेबस का जो भी हो वो लोकोमोशन चैप्टर लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोन का पार्ट हमें बहुत अच्छे से किया भी था. तो इसमें तुम्हें पूछा है लोकोमोशन मूवमेंट से, दैट इज़ ये क्वेश्चन थोड़ा 30 उसमें मिल जाएगा. 309, 310 एंड 311 पेज में मिलेगा, थोड़ा मिक्स करके आया है. तो इसमें अगर तुम देखोगे स्केप्यूला जो है, स्केप्यूला किस में आ जा रहा है, तुम्हारा ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है. और इसके बाद तुम्हारा वर्टिबल कॉलम क्या है, ये है. इसको मिला के एक बार देखो, इस ऑप्शन में तुम्हारा जो करेक्ट आंसर है 4 है. तो अगर 4 आंसर मिलाओगे तो इसमें तुम चेक करके अभी देखो तुम्हारा करेक्ट बैठा कि नहीं. वर्टिबल कॉलम कार्टिलेजिनस वाला आ जा रहा है, स्टर्नम वाला आ जा रहा है, इसमें दिस फ्लैट बोन, और क्रेनियम का आ जा रहा है फाइब्रस जॉइंट, और स्केप्यूला का आ रहा है ट्रायंगुलर फ्लैट बोन. ठीक है, तो आई थिंक तुमने 4 ही मार्क किया होगा. और ये पूछा है लोकोमोशन मूवमेंट से, अभी मैच करके एक बार देख लीजिए आप. ठीक है, चलिए. चलो, बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत कॉमन, बहुत अच्छे, बहुत क्यूट, बहुत स्वीट है, इसलिए हाँ, इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है. अब बोलो ये क्वेश्चन कहाँ से है. ये तो डायरेक्टली आता ही उससे 102 एनसीईआरटी 11. ये तुम्हें पूछा है जंक्शन से. ओके, इसमें कौन कौन सा जंक्शन का डेफिनेशन दिया है. इस बेसिस पे अगर तुम देखोगे इसमें आंसर आ रहा है 2, बिकॉज एक दिया है तुम्हारा लीकिंग को रोकना और एक दिया है इट हेल्प्स इन पासिंग द आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल और बिग मॉलिक्यूल. इन दैट बेसिस आंसर इज 2, दैट इज टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन रेस्पेक्टिवली. ओके, आप देखिए इसमें 193 मैम का है. मैम आप बोलिए. Okay, again the question is from molecular basis of inheritance. See students, how many questions are asked from genetics? So many questions are touched from molecular basis of inheritance as well as from principle of inheritance and cell cycle and cell division. Cell as a unit of life. Can you tell me a single word which I not taught in your class? Everything is taught. So all right, again statement are given. First statement, the codon AUG, it codes for methionine and phenylalanine. So it codes for methionine but not phenylalanine. Statement 2, AAA and AAG, they are degenerate codon. They code for the amino acid lysine. So statement 2 is correct here. Statement 1 is wrong. So as per the options, what will be the answer? Answer 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is true here, right? So next question, let's see. Yes, this is the question from zoology. So Rashmita ma'am will tell you the answer. तो ये क्वेश्चन फिर से ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया है. आपको पेज नंबर उसमें मिल जाएगा 53 एनसीईआरटी 12 में. इसमें डायरेक्टली लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम. वहाँ पे लिखा ही हुआ है, आप चेक कर लो अभी, पेज नंबर 53 एनसीईआरटी 12. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं. मैम का है ना, मेरा है. आ गया आपका आर्थवर्म. इसलिए कहा था कि कोई भरोसा नहीं है, आर्थवर्म फ्रॉग थोड़ा सा पढ़ लो, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इतना क्रिटिकल नहीं पूछा, नहीं तो फंस जाते शायद. थोड़ा तो रिवाइज किया होगा, तो आई थिंक ये तुम बोल पाए होगे कि उसमें तुम्हें पूछा है द प्रोस्टोमियम. प्रोस्टोमियम आपको याद है, पेज नंबर 107 में जाओ, उसमें डायग्राम है. 107 में उसका डिगिंग एपरेटस है वो. तो इसमें पूछा कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. करेक्ट के बेसिस पे पूछा, तो इसमें आंसर आ रहा है 1, दैट इज A, B एंड C. A, B, C आ रहा है. D इनकरेक्ट क्यों है? फर्स्ट बॉडी नहीं है. थोड़ा
एक जैसा नाम है, पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम। पेरिस्टोमियम इज द फर्स्ट सेगमेंट एंड प्रोस्टोमियम इज द डिगिंग एपरेटस, इसलिए इसमें ये गलत हो गया डी। ओके 107 में देख लेना, एकदम पता चल जाएगा क्या आंसर है। नेक्स्ट ये मैम का है शायद। So questions from molecular basis of inheritance. Histone, which one is wrong here you are asked? Histones are organized to form a unit of 8 molecules, so this is correct. pH of histone is slightly acidic. So no, it's basic. Histones are rich in amino acid, lysine and arginine, so this is correct, very true. Histones carry positive charge in the side chain. So this statement is also correct. So you are asked for the wrong statement. So this is answer will be second as per this question 196. So no chance to make mistakes, students. Next questions. Yeah, this is again from zoology. Yes. Rashmita ma'am will explain. So this is from locomotion and movement. You can refer to page number 307 and 308. This is from muscle contraction. Okay. तो in muscle contraction इसमें तुम्हारा जो आंसर आ रहा है 1 आ रहा है, तुम एक बार मिला लो, A, C, D और E आ रहा है, तो B क्यों गलत है? इसमें देखो A band widens, वो तो नहीं होगा, A band wide नहीं होता है, जो retain the length सेम रह जाता है length, इसलिए इनकरेक्ट है। ओके तो इसमें आंसर 197 का आपका 1 है। ये आप 307 और 308 लोकोमोशन मूवमेंट NCERT 11 देख लेना अभी। नेक्स्ट है 198 आपको पूछा है फिर से इसमें उससे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से, दैट इज़ 211 पेज में है, जीन थेरेपी करके लिखा हुआ है। तो इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बिकॉज लिम्फोसाइट का ग्रोथ नहीं होता है बिकॉज ऑफ एडिनोसिन डीएमएनेज। एक फिल्म था ना द स्काई इज पिंक, प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर, आयशा चौधरी वाला, 4 ईयर गर्ल चाइल्ड 1990 वाला, वो यही क्वेश्चन है, वहाँ पे ऐसे कुछ लिखा नहीं है, तुम बस 211 देख लेना। इसमें आंसर 1 होगा, दैट इज डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। ओके कि लिम्फोसाइट ग्रो नहीं करता, इमैच्योर रह जाता है, इसके लिए। नेक्स्ट है 199, ये इवोल्यूशन से पूछा, ये काफ़ी मेरा भी फेवरेट है, चलो आ तो गया। तो 199 का तुम अगर डायरेक्ट आंसर्स की तरफ जाओ, इसमें हाफ पोर्शन आया हुआ है, तो इसमें तुम मिला के अगर मैच करोगे तो ये 1 में आ रहा है। तो 1 में देख लो A4 है, B3, C2 एंड D1। तो A4 अगर तुम देखोगे इसमें तो मिला ही ले हो गया अभी तक कि एडाप्टिव रेडिएशन में दोनों पेज में आया ना ब्रेक करके, तो A4 है। तुम एक काम करो, इसमें डायरेक्टली तुम आंसर से देख लो कि 2 ब्रेक करके आया है, तो ना मैम इससे आंसर्स मैच कर लेंगे। तो इसमें आंसर मैच करो, वो 1 है, और डायरेक्टली ये तुम्हारा NCERT इवोल्यूशन चैप्टर में है, तो इवोल्यूशन चैप्टर में बहुत सारे पेजेस में स्कैटर्ड है, इसके लिए तुम पूरे अच्छे से एक बार देख के मैच करना, आंसर 1 आ रहा है। पढ़ा भी नहीं होगा, नहीं बताया तो गया था, यहाँ पे सर लोगों ने बताया था बहुत बार, नहीं सर विकास सर लोगों ने जब किया था तो बोला था कि रिड्यूस सिलेबस फॉलो नहीं करना है, तो एटलीस्ट वो हाँ पढ़े तो थे। अब ये आ गया, ये किससे है? इस ह्यूमेंथेल्डन डिजीज़ से। ह्यूमेंथेल्डन डिजीज़ से बहुत सारे पेजेस को कवर कर रहा है, 146, 147 बहुत सारे पेजेस में है, तो इसीलिए इसमें आंसर तुम देखोगे फाइलेरियसिस, वुचेरिया, बेनक्रॉफ्टी, मैले भी दिया था, बेनक्रॉफ्टी पूछा, एमीबियासिस, एंटीमेबा हिस्टोलिटिका, निमोनिया में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और एक स्टेप्टोकोकस निमोनी था, रिंग वर्म में आ गया तुम्हारा ट्राइकोफाइटन। तो इसमें करेक्ट आंसर आ रहा है आपका 2। ठीक है, तो हम काफ़ी खुश हैं कि मैम के NCERT से पूरा पूछा है। और टाइम नहीं लेंगे कि तुम लोग अभी धुक धुक कर रहा होगा केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। देखो विद इन 5 मिनट्स हमारे केमिस्ट्री फैकल्टी पूरा रेडी है, अभी आएंगे और आंसर्स बोलेंगे। ओके चलो मिलते हैं आफ्टर रिजल्ट, क्या अभी मिल लेंगे।